स्टॉप रिकॉर्डिंग झाल्यानंतर हाँ, sorry for disturbance. So we were discussing difference between the refrigerator and heat pump. So the purpose of both the devices, refrigerator and heat pump, is same. That is to transfer the heat from low temperature region to high temperature region. Now, if we are extracting the heat from the low temperature region, then it is called a refrigerator. If we are supplying heat to the low temperature region, then it, when we are supplying heat to the high temperature region, then it is called a heat pump. So both require work input for its operation. In refrigerator, there is a pumping of heat out of the system into the surrounding, whereas in case of heat pump, there is a pumping of heat from surrounding into the system. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, that you are here, you are pumping the heat out of the system. So this is a system for you. ये जो यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ, it is a system. So रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, सिस्टम से हीट निकाल रहा है, राइट, और ये है सराउंडिंग, और सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट कर रहा है. बट इन केस ऑफ हीट पंप व्हाट हैपन, दिस बिकम द सराउंडिंग एंड दिस बिकम द सिस्टम, दिस बिकम द सिस्टम. सो इन केस ऑफ हीट पंप, दिस हीट पंप इज taking the heat from the surrounding and rejecting it to the system, rejecting it to the system. इसका एग्जाम्पल अगर देने का रहा तो we can take the example of use of AC in summer and winter. अगर हम समर में AC को यूज कर रहे हैं तो AC समर में क्या कर रहा है, the AC in summer is extracting the heat from the room, मतलब रूम में से हीट निकाल के वो सराउंडिंग को रिजेक्ट कर रहा है ताकि सिस्टम मतलब अंदर का रूम का टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सके. हियर आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर, इनसाइड टेम्परेचर हमको कम रखना है, रूम का टेम्परेचर हमको कम रखना है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, और रूम के टेम्परेचर को, रूम के अंदर के हीट को बाहर रिजेक्ट करना है. तो वी आर रिजेक्टिंग द हीट फ्रॉम रूम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, राइट. अगर इसी एग्जाम्पल अगर हम समर में लेंगे, सॉरी, अगर इसी एग्जाम्पल को अगर हम विंटर में लेंगे तो क्या होगा, विंटर में आउटसाइड टेम्परेचर इज वेरी वेरी लेस, और हमें कंफर्ट के लिए टेम्परेचर थोड़ा 24-23 के आसपास चाहिए. अगर आउटसाइड का टेम्परेचर अगर 20 है एंड वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड द रूम 23, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूम के अंदर हीट डालनी पड़ेगी. तो वी हैव टू ऐड द हीट इनसाइड द रूम so that temperature in the room can be maintained at 23. So this is the example of heat pump. So in this way, as per our objective, we can make the system as a refrigerator or as a heat pump, right? So just by changing the direction of heat flow, we can make a refrigerator heat pump or heat pump as a refrigerator. So we'll see how to find the COP of a refrigerator. So again, COP will be, what is COP? COP is the ratio of desired output upon required input. So what is the desired output here? Desired output is heat taken from the cold body. ये जो दिख रहा है आपको, so we are taking the heat from the cold body. ये जो QL है, QL is the amount of heat taken by the cold body. So यहाँ पे मैंने लिखा QL, it is a QL upon work done. Work done is nothing but work done is, it is a difference of amount of heat transfer, amount of heat taken. दोनों का जो difference रहेगा, that is called work done. तो वो वर्क डन यहाँ पे लिखा हुआ है. सो दिस COP फॉर अ रेफ्रिजरेटर इज अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, दैट इज QL अपॉन QH माइनस QL. अगर मैं यही बात COP फॉर हीट पंप के लिए करूं तो अगेन सेम फॉर्मूला, COP फॉर पंप विल बी अगेन डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट. सो डिजायर्ड आउटपुट विल बी हीट डिलीवर्ड. यहाँ पे देखो फर्क है थोड़ा, पहले इसमें क्या था, हीट एक्सट्रैक्टेड, वो हमने QL लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हीट डिलीवर्ड. आवर ऑब्जेक्टिव इज to deliver hot heat to the room को heat supply करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव रहेगा that will be QH. So it ratio, what will be the ratio? It will be the amount of heat delivered, that is QH upon work done. तो COP for रेफ्रिजरेटर में आपने देखा था, ऊपर जो टर्म आई थी वो यहाँ पे QL थी, कहां पर, रेफ्रिजरेटर में. बट इन केस ऑफ पंप इट विल बी QH, वो रहेगा QH, and work done will be same in both the cases. So we'll see the relation between COP of refrigerator and pump. So see, this is the relation. First, COP for pump is given as WH minus W work done. That will be equals to, WH is the amount of heat extracted
sorry, heat delivered to the room, that is QH upon work done QH minus QL. अब ये जो टर्म है, इस टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दैट इज QL अपॉन QH माइनस QL. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस टर्म, राइट, और उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा +1. तो ये जो टर्म है, दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म, बट यू कैन सी ये जो टर्म है QL अपॉन QH माइनस QL, इट इज नथिंग बट COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1. तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है हमें COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर मे बी ग्रेटर देन और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बट COP ऑफ द पंप इज ऑलवेज मोर देन 1. ये फॉर्मूला से हम यहाँ पे क्या करें, COP ऑफ द पंप इज इक्वल टू COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर +1. ये होने के कारण हम बोल सकते हैं कि COP ऑफ द पंप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. ये बहुत बड़ा यूजफुल रिलेशन है. इस रिलेशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. तो इतना आपको याद रखना है, COP ऑफ द पंप इट इज इक्वल टू COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर +1. See the unit of refrigeration. So the refrigerating equipment, it is rated in terms of TR. जिस प्रकार से हीट इक्विपमेंट हम रेट करते हैं आइदर किलोवाट और HP में, उसी प्रकार से रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट को भी रेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ TR, और उसको डिफाइन किया जाता है. हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज अ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ 1 ton ऑफ आइस फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स. मतलब अगर आपने 1 टन आइस लिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो उस आइस को 24 घंटे में मेल्ट करने के बाद जो भी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. इसको हम अदर वे भी डिफाइन कर सकते हैं. सो इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ लैटेंट हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर. मतलब वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए उस वाटर में से जो भी हीट हमको निकालनी पड़ेगी विद इन 24 आवर्स, इट इज कॉल्ड 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. व्हाट इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? 1 टन वाटर जो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लेंगे, उस वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए विद इन 24 आवर्स जितनी हीट उस वाटर में से निकालनी पड़ेगी, दैट हीट इज कॉल्ड एज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. एंड इट इज गिवन एज 1 TR equals to 210 kilojoules per minute, or it is also equals to 3.5 kilowatt. ये again relation you have to keep in mind that 1 TR equals to 210 kilojoules per minute or 3.5 kilowatt. So now you see the numericals on refrigerator or heat pump. What kind of questions asked? We'll see here. Before is a ratio of heated or a refrigerating effect. COP means the performance is given by heat extracted or a refrigerating effect divided by work done by the compressor. Compressor से work हुआ, that is the work done by the compressor. So be given as, if it is a refrigerator, then COP will be QL upon W in. What is QL? QL is the amount of heat extracted, minimum amount of heat extracted from low temperature region, that is a QL. And this W in is the, just a minute, I get a pen. This WN is the work done, that is QH minus QL. So COP for refrigerator ये हो गया in terms of heat unit. अगर आपको टेम्परेचर के फॉर्म में चाहिए तो this COP for refrigerator is minimum temperature, that is TL, upon the difference of highest temperature and minimum temperature. The TS stand for high temperature and TL stand for minimum temperature. So COP for refrigerator in terms of temperature is TL upon TS. COP for pump is same formula, COP that is amount of heat extracted upon W, but यहाँ पे जो heat रहेंगी that will be यहाँ पे H रहेगा. This is a H. It will be QH upon QH minus QL, because for pump we consider the desired effect as the highest heat delivered to the room, and in case of refrigerator we consider minimum heat extracted from the room as a desired effect. इसलिए यहाँ पे QH आएगा. So similarly in terms of temperature, the COP for pump will be TH upon
TH minus TL. This TH is the highest temperature at which the heat to be delivered to the room. So again just have a look at COP for refrigerator. दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है. यहाँ पे जो टेम्परेचर है मिनिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, and in case of pump it is the highest temperature in the top, that is 2H. Also one more relation is having, that is a relation between COP for heat pump and COP for refrigerator, as COP for a pump is equals to COP of refrigerator plus 1. ये चार फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑन heat pump and refrigerator. So we'll take the first numericals. First numerical is MCQ is this numericals is taken in 2003 exam. Coefficient of performance COP of a refrigerator working as a heat pump. मतलब ये जो यूनिट है इट इज वर्किंग एज अ हीट पंप. याद रखना आपने, यहाँ पे जो हम रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट ले रहे हैं इट इज वर्किंग एज अ हीट पंप. एंड दिस हीट पंप वहां पे क्या लिखा, द COP of a refrigerator working as a heat pump is given by, मतलब what is the relation between refrigerator and heat pump. So just हमने अभी देखा हुआ है that relation is heat pump equals to COP of a refrigerator plus 1. मतलब COP of the pump it is equals to COP of a refrigerator plus 1. ये कहाँ से आया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे COP of pump is given by the relation heat delivered upon work, that is equals to QH upon QIN. QH is the heat delivered and WIN is the work done. So we can write this work done as a QH minus QL. ये हमें पता है. So this term we can also write as a QL upon QH. ये टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं as QH की जगह पे अगर मुझे यहाँ पे QL रखना है तो यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो I will get QH upon QH minus QL. Now you can see here this QL upon QH minus QL is nothing but COP for a refrigerator. Now put this value COP for this term here in this equation. So you can have COP for the pump equals to COP for refrigerator plus 1, and therefore our answer is answer B. ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे. We'll take second question. See the second question क्या बोल रहा है. In second question the machine operates on reverse Carnot cycle between, ये temperature given है यहाँ पे. Temperature given is 6 degree centigrade, टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब आपको यहाँ पे जो COP पूछा गया, COP ऑफ मशीन एज अ रेफ्रिजरेटर एज अ हीट पंप, दो निकालना है आपको. एक यूनिट का जिसका टेम्परेचर गिवन है उस टेम्परेचर का यू हैव टू, उस मशीन के लिए यू हैव टू फाइंड द COP एज अ रेफ्रिजरेटर एंड COP एज अ हीट पंप. दोनों केस में आपको COP फाइंड करना है एज अ रेफ्रिजरेटर एज अ हीट पंप. हाउ टू फाइंड इट, जस्ट हियर these are the रेफ्रिजरेटर. and CO रिलेशन में जो भी आप टेम्परेचर को पुट करोगे इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ केल्विन. और ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर गिवन इन टर्म्स ऑफ मिनट, जस्ट अ मिनट. यस, ये जो टेम्परेचर हमको यहाँ पे गिवन है, दिस टेम्परेचर आर गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड. देखोगे यहाँ पे तो हमें क्या करना है, ये डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ केल्विन, because this relation is for Kelvin temperature. Therefore we added here 273. In every case you have to add 273. So TL will be equals to, TL in Kelvin will be equals to 6 plus 273 divided by, यह जो ब्रैकेट अभी यहाँ पे भी हमको टेम्परेचर को पुट करना है, TH is 37 plus 273 7
जगह पे हमने यहाँ पे माइनस लिखा एंड देन टीएल विल बी इक्वल टू 6 + 273 एंड दिस विल गिव यू दिस रेशियो एंड इसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वैल्यू एज अ 9. सो व्हाट इज COP फॉर अ रेफ्रिजरेटर इज अ 9. जो यहाँ पे पूछा ना फाइंड COP फॉर अ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का COP कितना आ गया 9. अब हम फाइंड करते हैं COP फॉर पंप. तो COP फॉर पंप के लिए फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला कौन सा है, वहां पे सिर्फ आपको TL को रिप्लेस करना है TH के साथ. यहाँ पे आएगा TH जो यहाँ पे TL था. अगेन पुट द वैल्यू, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट आंसर एज अ 10. तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, COP फॉर अ रेफ्रिजरेटर इट इज अ 9 एंड COP फॉर पंप इट इज अ 10. सो आंसर विल बी फर्स्ट आंसर दिस A. यहाँ पे जो आंसर रहेगा विल बी आंसर A, दैट इज 9 एंड 10. अब ये जो COP मैंने यहाँ पे पंप की फाइंड की रिलेशन के साथ, तो इसको हम अदर वे भी फाइंड कर सकते हैं. हमको रिलेशन पता है COP फॉर पंप इक्वल्स टू COP फॉर रेफ्रिजरेटर +1. उसको हम यहाँ पे यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं. तो वी कैन फाइंड द COP लाइक दिस, इट इज 9 + 1 इक्वल्स टू 10. So you can find the COP using this relation or you can find the COP using this relations also. Third question. So answer is A here. Third question. It is asked in 2014, GATE 2014, and marks for this question was 2 marks. देखो यहाँ पे 2 मार्क्स से गेट 2014 में इसको पूछा गया है. हीट पंप एब्सॉर्ब 10 किलोवाट ऑफ हीट इज गिवन. हीट इज गिवन 10 किलोवाट फ्रॉम आउटसाइड, राइट. हमने यहाँ पे क्या है, ये हीट पंप है वो 10 किलोवाट ऑफ हीट मतलब एटमोस्फेयर से सब कर रहा है यहाँ से. तो हीट इज absorbed by this heat pump which is equal to 10 kilowatt, means QL equals to 10 kilowatt at 25 degree centigrade. यहाँ पे जो टेम्परेचर इज T1 is 250 kilo. The temperature is T1 equals to 250 kilo. While absorbing the heat 15 kilowatt of work is done. मतलब जब वो 10 किलोवाट हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इज 15 किलोवाट. तो ये जो WV है ना, इट इज हाउ मच, इट इज इक्वल टू 15 किलोवाट. ये वर्क गिवन है, इट इज 15 किलोवाट, राइट. पूछा क्या इन्होंने, इट डिलीवर द हीट टू अ रूम दैट मस्ट केप्ट वार्म एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये जो हीट इसने एब्सॉर्ब किया ना, ये हीट को उसको सप्लाई करना है रूम को. अब वो रूम को एक्चुअली कितनी हीट सप्लाई होंगी ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है, और फाइंड करना है COP. वी हैव टू फाइंड द COP ऑफ द पंप, राइट. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एक पंप है, दैट पंप इज एब्सॉर्बिंग 10 किलोवाट ऑफ हीट एंड फॉर एब्सॉर्बिंग 10 किलो ऑफ हीट उसको जो काम करना पड़ा वो 15 किलोवाट का काम करना पड़ रहा है, राइट. अब ये जो हीट उसने एब्सॉर्ब की है उस हीट को उसको रूम को सप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे उसको सप्लाई करना है, एंड दैट इज नथिंग बट QH. एंड यू हैव टू, सो दैट टेम्परेचर मेंटेन कैन बी 300 केल्विन. तो ये 300 टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे कितना QH लगेगा ये आपको फाइंड करना है, ये 300 केल्विन, और साथ में आपको फाइंड करना है उसका COP. हाउ विल यू फाइंड, लेट्स सी. तो इसका आंसर क्या रहेगा, COP ऑफ द पंप इज गिवन बाय द रिलेशन हीट डिलीवर्ड टू द हॉट बॉडी अपॉन वर्क डन. ये फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज इक्वल्स टू हीट डिलीवर्ड टू द हॉट बॉडी विल बी QH. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, QH फाइंड करना है. ये QH हो गया, ये QH. So QH the heat delivered, right, upon work done. This work done is given to us, right. So work done equals to W in upon QH minus QL. Sorry, this work done W in equals to QH minus QL. So Q in we know that is how much, 15 degree. ये QH यहाँ पर given है, कितना दिया हुआ है 15. इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो 15. एंड देन QL is also known to us. ये QL है यहाँ पे 10 किलोवाट, उसको हम पुट करते हैं. पुट करने के बाद यू कैन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट विच इज टू बी डिलीवर्ड टू दी हॉट रूम, दैट इज QH. तो QH कितना आएगा यहाँ पे, QH विल बी, ये QH जो है यहाँ पे आएगा 25 किलोवाट. QH इधर ले लेंगे, QH को यहीं पे रखेंगे, 10 को हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो एडिशन हो जाएगा, दैट विल गिव QH 25. नाउ विल फाइंड द COP. COP का फॉर्मूला क्या है, इट इज QH अपॉन W इन. QH हमने जस्ट फाइंड किया हुआ यहाँ पे, QH we have find it, that is 25. W in is given to us, that is 15, right. उसका रेशियो ले लो, तो रेशियो विल बी 25 अपॉन 15. ये जो रेशियो आएगा दैट रेशियो विल बी how much, it will be 1.7. So answer is D, that is 1.7 is the answer for the given question, that is 1.7.
is the amount of COP that will be developed by the heat pump. So this is second question. Now third question. So these are the question on MCQ question on heat pump and refrigerator. We'll see the next category of question, that is on VCR cycle. VCR साइकिल पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को हम देखेंगे. उसके पहले VCR साइकिल का थोड़ा सा बेसिक देख लेते. तो VCR साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल. दिस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल किस प्रकार से काम करती है? इट यूजेस वन वर्किंग फ्लूइड टू एब्सॉर्ब द हीट and that working fluid it is called as refrigerant. This refrigerant circulates into the system and it absorbs the heat from one region to maintain very low temperature, and then whatever heat is absorbed वो heat को reject करता है दूसरे जगह पे. to reject करने से क्यों reject करता है? So that refrigerant can be reused again. क्योंकि क्या होता है कि when this refrigerant absorb the heat तो लिक्विड से बन जाता है वेपर ड्यू टू इवापोरेशन. अब अगर आपको फिर से उसको रीयूज करना है तो उस वेपर को फिर से आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर आपने वेपर फॉर्म में रीयूज किया तो इट विल एब्सॉर्ब लेस हीट, आपका सीओपी बहुत कम आएगा. देयरफॉर उसको अगर रीयूज करना है तो जो हीट उस रेफ्रिजरेंट ने एब्सॉर्ब की है उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा. इसलिए रिजेक्ट करने के लिए कुछ अब यहाँ पे दूसरे इक्विपमेंट को यूज करते हैं. तो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हो हम देखेंगे यहाँ पे. So during VCR cycle, substance called refrigerant circulates continuously through the following 4 stages. 4 stages में वो काम करता है to absorb the heat and to reject the heat. कौन-कौन सी stages है? Stage number 1 is the evaporation stage. Evaporation stage में क्या करता है? वो heat को absorb करता है and due to absorption of heat, this liquid refrigerant gets converted into a vapor and then it goes to compression stage. compression stage में क्या होता है? उस रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाया जाता है so that it will lose the heat. फिर थर्ड स्टेज आती है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन स्टेज में क्या होता है? ये जो रेफ्रिजरेंट वेपर है, रेफ्रिजरेंट वेपर अपने अंदर के हीट को रिजेक्ट करता है ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ हीट इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वेपर टू लिक्विड अगेन. फिर फोर्थ नंबर की स्टेज आती है, दैट इज इवापोरेशन स्टेज. अब इवापोरेशन स्टेज में क्या होता है? यहाँ पे हमको फिर से टेम्परेचर और प्रेशर को कम मेंटेन करना है, क्योंकि लेकिन हमें इवापोरेशन के लिए प्रेशर टेम्परेचर बहुत कम चाहिए. सो दैट दिस इज नॉट इवापोरेशन, दिस इज एक्सपांशन. यहाँ पे इवापोरेशन लिखा मैंने बट इट इज अ एक्सपांशन. ये आपकी एक्सपांशन है. इट इज अ एक्सपांशन स्टेज. यहाँ से गलती से कॉपी पेस्ट में वो इवापोरेशन हो गया. इट शुड बी एक्सपांशन. फोर्थ स्टेज इज एक्सपांशन. एक्सपांशन स्टेज में हम उसको क्यों पास करते हैं रेफ्रिजरेंट पे? बिकॉज इट शुड वी हैव टू मेंटेन लो टेम्परेचर लो प्रेशर इन द इवापोरेटर. क्योंकि एक्सपांशन से बाद उसको कहाँ पे जाना है? फिर से स्टेज नंबर 1 वो इवापोरेशन में जाना है, और इवापोरेशन में यू हैव टू मेंटेन वेरी लो टेम्परेचर लो प्रेशर. देयरफॉर जो रेफ्रिजरेंट वेपर है जिसका टेम्परेचर प्रेशर अभी बहुत ज्यादा है उसको हमें कम मेंटेन करना है. वो कम मेंटेन करने का काम एक्सपांशन डिवाइस करता है. So these are the 4 stages through which refrigerant is passing in VCR cycle in maintaining the low temperature or in for absorbing the heat from a substance to be cooled. We'll see the what are the various components of VCR system. So various component of VCR systems are these are the various components, that is evaporator, compressor, condenser and expansion devices. These are the 2 components. You can see here how this system, we can see how this system works. So friends, these are the 4 components that is there in VCR system. वो 4 components यहाँ पे मैंने show की है. Sequence is पहला one is evaporator. ये evaporator यहाँ पे लगा हुआ है. So this is evaporator. यहाँ पे दिख रहा, this is evaporator. Then compressor, second number is compressor. So this is a compressor here, second number. यहाँ पे इसको मैं arrow दिखाता हूँ, compressor. Then third is a condenser. This is a condenser. So this one is the third number, condenser. And fourth one is the expansion wall. यहाँ पे fourth number दिया मैंने expansion wall के लिए. So this is the fourth number. So this is the arrow in which refrigerant will be circulating. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते. दिस यहाँ से हम we start from this point.
here you can see the color of this refrigerant is green. So green color means low pressure. It is a mixture of vapor and liquid. Low pressure gas liquid will enter the evaporator. In the evaporator, this liquid refrigerant will absorb the heat, provide the cooling effect. Due to absorption of the heat, this refrigerant will get converted into a low pressure, low temperature वेपर. यहाँ पे जो ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू कलर इज लो प्रेशर वेपर. लिक्विड पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है, इट हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर. और फिर ये जो वेपर है, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर टेम्परेचर विल एंटर दी इन दी कॉम्प्रेसर. गैस फॉर्म में कॉम्प्रेसर में एंटर करेगा. इन दी कॉम्प्रेसर दिस रेफ्रिजरेंट वेपर विल बी कॉम्प्रेस. उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा. सॉरी, यू कैन सी हियर the pressure low. The pressure is at the inlet to compressor, pressure is very low, that is 3.5, whereas at the outlet pressure is very high, that is 44, 10.6 and temperature is 44. तो हमारा पर्पस, कंप्रेसर का पर्पस क्या है यहाँ पे? टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट. नाउ सी द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट हियर इज red. Red means high pressure gas. This is the high pressure gas. This high pressure gas will then enter the condenser. Again in the condenser, this high pressure gas will reject the heat. यहाँ पे heat rejection होगा to the atmosphere, atmospheric air. But ये जो heat rejection होगा वो constant temperature, constant pressure पे होगा. Due to rejection of heat, this vapor will get converted into liquid. But यहाँ पे pressure, temperature constant होने के कारण you will get the same pressure, temperature at the outlet of the condenser. But condition of the refrigerant will be changed. That is, it will be liquid. यहाँ पे देखो green color है. Green का मतलब क्या हो गया? Liquid. तो लिक्विड मिल गया. लिक्विड का प्रेशर हाई है यहाँ पे. दिस हाई प्रेशर लिक्विड विल देन एंटर द एक्सपांशन डिवाइस. अब यहाँ पे पर्पस क्या है? एक्सपांशन डिवाइस में उसको पास करने का पर्पस ये है कि उसके टेम्परेचर, उसके प्रेशर को हमें ड्रॉप करना है फ्रॉम 44 टू 44. सो दिस एक्सपांशन डिवाइस इज अ टाइप ऑफ यू कैन से एक ऑब्स्ट्रक्शन डिवाइस. वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को. एंड देयरफॉर ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस टू द फ्लो, प्रेशर इज ड्रॉप फ्रॉम 10.6 टू 3.5 बार. और ये क्या होता है? जब यहां से वो रिस्ट्रिक्शन के थ्रू पास करेगा तो ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन वहां पे थोड़ी हीट डेवलप होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट सम अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज गेट इवापोरेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ वेपर. इसलिए यहाँ पे आप देखोगे एट दिस पॉइंट यू विल बी हैविंग 100% लिक्विड, बट एट द आउटलेट ऑफ द इवापोरेटर देयर इज सम अमाउंट ऑफ वेपर विच इज फॉर्म ड्यू टू द हीट डेवलप थ्रू फ्रिक्शन. एंड देन यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया. कलर बन गया ग्रीन. ग्रीन कलर का मतलब होता है लो प्रेशर गैस लिक्विड. अब यहाँ पे मिक्सचर जो बन गया, ये मिक्सचर को फिर हम ऐड करते, पास करते इवापोरेटर में टू टेक द पार्ट इन सेकंड प्रोसेस. एंड इन दिस वे दिस साइकिल वर्क्स. नाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस VCR cycle on the pH and TS chart. It is very important to get how this chart, this cycle is represented on the pH and TS chart. क्योंकि इस pH and TS चार्ट के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स को पूछे जाते हैं. सो दिस इज pH चार्ट. तो उसके पहले थोड़ा हमको ये pH चार्ट को समझना पड़ेगा. देखो pH चार्ट की जो लाइंस होती है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस है. हर एक लाइन का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले जो ब्लू कलर की लाइन है, जो दिख रही है आपको लाइन ब्लू कलर की, ये लाइन को बोला जाता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन. दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन. और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. और क्रिटिकल पॉइंट के जो राइट साइड में जो लाइन दिख रही है, जो मैं एरो निकाल रहा हूँ, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन. क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है, जो क्लिक किया हुआ मैंने यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सबकूल्ड रीजन. और ये जो कर के बीच में का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड मिक्स रीजन और वेट रीजन. और राइट साइड का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं सुपरहीटेड रीजन. देन दिस लाइन, दिस रेड कलर लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, एरो जो शो कर रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर लाइन. और दूसरी जो ब्लैक कलर की लाइन है, जहां पे मैं भी ये ओवरराइट कर रहा हूँ उसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन. इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, ये जो इनसाइड द कर, ये जो कर के इनसाइड का पोर्शन इस टेम्परेचर लाइन का, इट इज अ कांस्टेंट वन. बाकी देखोगे आप लेफ्ट साइड में ये जो पोर्शन है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, राइट साइड में टेम्परेचर कम हो रहा, बट इनसाइड द कर टेम्परेचर प्रेशर इज कांस्टेंट. ये आपको याद रखना है. एंड ये जो ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज द कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है, जो दिख रही है आपको कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन. इस प्रकार से आप निकाल सकते हो. सी हाउ टू रिप्रेजेंट. तो ये 4 प्रोसेसेस है. VCR साइकिल की पहली प्रोसेस लेते हैं हम, कॉम्प्रेशन. तो विल टेक फर्स्ट प्रोसेस एज अ कॉम्प्रेशन. एक कॉम्प्रेसर है. जैसे यहाँ से कॉम्प्रेसर स्टेज 1
स्टेज 1 to 2 उसको कॉम्प्रेस करेगा इन द कॉम्प्रेसर, द कॉम्प्रेशन से उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, और फॉर मिनिमम वर्क हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो भी कॉम्प्रेशन की जो प्रोसेस हो रही है इट इज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे दिस इज ये जो 1 पॉइंट है, दिस 1 पॉइंट इट इज द इनलेट टू द कॉम्प्रेसर। तो ये हो गया इनलेट टू कॉम्प्रेसर। इमेजिन करो कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड वेपर, ये वेपर लाइन है, दिस इज अ वेपर लाइन, और ये सैचुरेशन लाइन है। तो इस सैचुरेशन लाइन के जो भी पॉइंट रहेगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड saturated vapor condition of the refrigerant. So we are assuming here that at inlet to compressor the condition of refrigerant vapor is saturated liquid. तो सैचुरेटेड लिक्विड में कंप्रेसर में एंटर करेगा। यहाँ पे देखो ये जो क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे उसके ऊपर काम होगा। एंड दिस रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर विल बी कॉम्प्रेस आइसेंट्रोपिकली टू गेट पॉइंट 2। ये पॉइंट 2 तक उसको कॉम्प्रेस किया जाएगा। कहां से कहां तक? फ्रॉम कंडेंसर, फ्रॉम इवापोरेटर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर, उसको कॉम्प्रेस किया जाएगा अप टू पॉइंट 2। and this process 1-2 it is called 1-2 process, it is called isentropic compression process, जहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहेंगी। फिर सेकंड प्रोसेस आती है 2-3। 2-3 प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर। तो ये होगी कॉम्प्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो 2-3 प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहां पर हो रही है? ये प्रोसेस हो रही है कंडेंसर में। दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन कंडेंसर, दिस इज कंडेंसर। यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। देखो QH, हीट रिजेक्टेड टू द एटमोस्फियर। जैसे ही अभी यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 2, दिस पॉइंट नंबर 2 इज द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर और इनलेट टू कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर जाएगा, कंडेंसर के अंदर जाएगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा एंड हीट विल बी रिजेक्टेड। सो बिकॉज ऑफ दिस रिजेक्शन, यहाँ पे जो रिजेक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन हो रहा, तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, हम शो कर रहे हैं उसको। और धीरे धीरे जो कंडीशन, अब देखो यहाँ पे कैसी कंडीशन थी? सैचुरेटेड वेपर, और उसपे उसका टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या होगी? सुपर हीटेड वेपर। अब ये जो सुपर हीटेड वेपर को हम कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करेगा, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होने से इट विल ट्राई टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ सैचुरेटेड लिक्विड। और व्हेन इट रीचेस द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर, पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 जो है आउटलेट है कंडेंसर का, वो जब वो कंडेंसर के आउटलेट पे पहुंचेगा तो सारी की सारी सुपर हीट है जो कन्वर्ट हो जाएंगी, वो कहां पे चली आएंगी? वो सुपर हीट बन जाएंगी सैचुरेटेड लिक्विड में। यहाँ पे पूरी जो वेपर है वो वेपर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, एंड यू विल गेट सैचुरेटेड विच इज द आउटलेट ऑफ कंडेंसर। फिर थर्ड प्रोसेस आती है 3-4। 3-4 इज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होती है एक्सपांशन डिवाइस में। ये एक्सपांशन डिवाइस, सो पॉइंट नंबर 3 इज द आउटलेट ऑफ कंडेंसर और इनलेट ऑफ एक्सपांशन वॉल्व। अब देखो यहाँ पे जैसे वो एक्सपांशन वॉल में एंटर करेगी, वहां पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस होंगी। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज नथिंग बट दी प्रेशर रिड्यूसिंग प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, सॉरी कांस्टेंट एंथैल्पी पे प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो हम कांस्टेंट एंथैल्पी पे एक लाइन शो करेंगे 3-4, सो 3-4 इज द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, और यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 4। and then this point number 4 is the outlet of expansion valve और it is the inlet to the evaporator, evaporator का inlet है। और ये जो रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट मिक्सचर है वो फिर एंटर करेगा evaporator में। अब देखो यहाँ पे कैसी कंडीशन है रेफ्रिजरेंट की? इट इज अ मिक्स फॉर्म। मिक्स फॉर्म में यहाँ पे 3 पे कैसी थी? वो 3 पे थी सैचुरेटेड लिक्विड, लेकिन जैसे ही वो 4 पे आ गई तो वो बन गई मिक्सचर, क्योंकि वहां पे थोड़ा वेपर ऐड हो गया। बिकॉज इन द एक्सपांशन वॉल ड्यू टू हीट जनरेटेड some amount of liquid is converted into a vapor, और लिक्विड और वेपर दोनों अभी वहां पे मिक्सचर है, वो मिक्सचर इवापोरेटर में इनलेट करेगा, एंटर करेगा एट पॉइंट नंबर 4। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहां पे मिल रहा है? यहाँ पे हमको मिल रहा है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। कंप्रेसर का वर्क कहां पर हो रहा है? यहाँ पे कंप्रेसर का वर्क हो रहा है, राइट? तो दिस इज द कंप्रेसर वर्क 2-1 एंड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज 1-4। So in this way we can represent the VCR cycle on the pH chart. अब हम निकालते COP. So how to find the COP? We'll find the COP for first refrigerator. So ये रेफ्रिजरेटर है, और रेफ्रिजरेटर के लिए COP कैसे फाइंड करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। What is the formula for COP? COP for refrigerator is the desired output upon required input, and here desired output is a cooling effect. Cooling effect is a desired our desired output, एंड वर्क डन इज द इनपुट, क्योंकि हम उसको जो पावर दे रहे हैं वो कंप्रेसर के थ्रू उसको हम इनपुट दे रहे हैं। तो रेशियो ऑफ आउटपुट दैट इज कूलिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, इट इज कॉल्ड COP फॉर रेफ्रिजरेटर। तो कूलिंग इफेक्ट इज नथिंग बट QL,
दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट, राइट। अब एक कूलिंग इफेक्ट कहां पर मिलता है, मैंने कहा था कूलिंग इफेक्ट हमको मिलता है यहां पर। तो इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 1 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 4, दैट इज H1 माइनस H4। ये एक्स एक्सिस पे आपको एंथैल्पी मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे, H1 माइनस H4 दैट विल गिव यू कूलिंग इफेक्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है H1 माइनस H4, इट इज अ कूलिंग इफेक्ट। और अपॉन वर्क डन, वर्क कहाँ पे हो रहा है, वर्क इज डन बाय द कंप्रेसर, कंप्रेसर काम कर रहा है, ये कंप्रेसर का वर्क डन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन अगेन एंथैल्पी डिफरेंस। तो एंथैल्पी डिफरेंस कैसे लेगा हम यहाँ पे, H2 माइनस H1। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा मैंने H2 माइनस H1। तो ये जो फॉर्मूला है H1 माइनस H2, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन बाय द, सॉरी, इट इज द COP फॉर द रेफ्रिजरेटर। Similarly, we'll find the COP for heat pump. हीट पंप के लिए COP कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी, ओनली डिफरेंस इज in the COP, in the desired output of for heat pump. For heat pump, what is the desired output? What for heat pump desired output is a heating effect. मतलब here you want a heat, मतलब heat rejected, और heat कहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, heat यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है। So this is the desired output। तो सिर्फ हम QL को चेंज करेंगे QH के साथ। तो COP में हम QL की जगह पे यहाँ पे QH लिखेंगे। तो QH का फॉर्मूला क्या आएगा, नाउ QH will be equal to this H2 upon, सॉरी, H2 माइनस H3, क्योंकि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है, इट विल बी H2 माइनस H3। ये हो गया डिजायर्ड आउटपुट, एंड रिक्वायर्ड इनपुट इज सेम, दैट इज वर्क डन, वर्क डन इज H3 माइनस H1, सॉरी, H3 माइनस H1। This is the desired output, sorry, this is the work input, and therefore COP for heat pump will be equal to H2 minus H3 upon H2 minus H1. This will be the COP for the heat pump. Now we'll see numericals on VCR cycle. For the numericals on VCR cycle, we'll see some formulas. These are the formulas. एक थोड़ी समरी लेते हम यहाँ पे, समरी क्या बोल रही है, तो जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो पीएच चार्ट है, दिस इज पीएच चार्ट, यहाँ पे प्रेशर है, ये एंथैल्पी है, यहाँ पे HR। यहाँ पे जो लाइन है 1-4, ये जो 4-1 लाइन है, ये आपको देंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, क्योंकि ये प्रोसेस जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, वो प्रोसेस हो रही है इवापोरेटर में। तो हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ पर मिलेगा, 1-4 इज गिविंग द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सिमिलरली वर्क डन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है कंप्रेसर में। तो 2-1, ये जो 2-1 है, ये दिस इज द कंप्रेसर, दिस इज गिवन द कंप्रेसर वर्क। यहाँ लिख रहा है 1 पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट इज द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर, पॉइंट 1 it is the exit of the compressor or it is the inlet to compressor. Then point number 2, it is the exit of the compressor or it is the inlet to condenser, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, this is a condenser, this is a condenser, this is a condenser। तो point number 2 it is the inlet to condenser or outlet, point number 2 is inlet to condenser or outlet to compressor। Similarly, point number 3 it is a outlet to condenser or inlet to expansion valve, because ये जो 3-4 प्रोसेस है, ये 3-4 प्रोसेस क्या है, एक्सपांशन प्रोसेस है। तो point number 3 is outlet to condenser or it is inlet to expansion valve, and point number 4 is again it is outlet to expansion valve or it is a inlet to evaporator, क्योंकि यहाँ पे ये evaporator प्रोसेस है, ये हमको समझना है। These are some formulas, ये फॉर्मूला we required to solve the numericals। so ये फॉर्मूला हम सबको पता है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। COP का फॉर्मूला क्या, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क ऑफ कंप्रेसर। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इक्वल्स टू मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द H1 माइनस H4। ये एक्चुअली फॉर्मूला है H1 माइनस H4। दिस H1 माइनस H4 इट इज अ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अगर उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यूनिट मिलेगा किलोवाट में, नहीं तो अगर हम मास से मल्टीप्लाई नहीं करते तो हमको मिलेगा सिर्फ किलो जूल्स पर केजी। तो वहां पे जो मास रहेगा 1 रहेगा, इसलिए 1 रहेगा तो वहां पे मास लेने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन किलो जूल्स पर मिनट और किलो जूल्स पर सेकंड और इन किलोवाट, देन हमको उसको मास से मल्टीप्लाई करेगा। एंड व्हाट इज द मास, मास इज द amount of refrigerant used or amount of refrigerant which is circulating in the system। सिमिलरली कंप्रेसर वर्क भी, कंप्रेसर वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे ये H2 है यहाँ पे और ये H1 है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो ये 2 पॉइंट के बीच में का जो एंथैल्पी डिफरेंस है दैट इज H2 माइनस M1,
और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ रेफ्रिजरेंट से, तो दैट विल गिव अस द अमाउंट ऑफ कंप्रेसर वर्क। और ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और कंप्रेसर वर्क का जो रेशियो रहेगा मींस ऑफ H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, इट विल गिव अस COP, क्योंकि COP का फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क ऑफ कंप्रेसर। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो वी विल गेट द वर्क, विल गेट द COP, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। Now, based on these formulas, we will take some numericals, MCQ question. So, student, first question, VCR cycle operating with the condensing temperature 35. So, 35 degree centigrade is the condensing temperature, or you can say higher temperature. देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने 35, ऊपर का टेम्परेचर 35, हाईएस्ट टेम्परेचर इसलिए ऊपर है। एंड दिस इज द पीएच चार्ट, ये जो चार्ट यहाँ पे निकाला है दिस इज द पीएच चार्ट। तो यहाँ पे रहेगा प्रेशर, यहाँ पर रहेंगी एंथैल्पी, एंड इवापोरेटिंग टेम्परेचर इज -10। मिनिमम टेम्परेचर, तो मिनिमम टेम्परेचर नीचे आएगा इवापोरेटर में, वो कितना है, इट इज -10। डेवलप 50 किलोवाट ऑफ कूलिंग। व्हाट इज दिस 50 किलोवाट? 50 किलोवाट इज अ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 15 किलोवाट। फिर लिखा है द पीएच चार्ट शोज द एंथैल्पी। अब इस पीएच चार्ट के ऊपर कुछ एंथैल्पी शो की हुई है आपको, 475, 400, 250। ये 470 कहां पर है, इट इज 0.2। 0.2 किसको बोलेंगे, इट इज द आउटलेट ऑफ एक्सपांशन, इट इज आउटलेट ऑफ कंडेंसर, सॉरी compressor. Point number 2 is the inlet to condenser or it is outlet of the compressor. And point number 1 क्या है, point number 1 is the outlet of evaporator or inlet to condenser. Similarly point number 3 and point number 4 they are the same, 3 और 4 दोनों सेम है क्योंकि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है। और यहाँ पे जो आपको एंथैल्पी मिल रही है 250, इट इज either at the outlet of expansion wall or at the inlet to the evaporator. तो यहाँ पे व्हाट इज आस्क्ड, यहाँ पे गिवन है अगर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इज 75% फॉर द कंप्रेसर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसर पावर, मतलब कंप्रेसर का पावर हमको पूछा है इन किलोवाट, और वो हमें सिलेक्ट करना इन चार में से कौन सा है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक वीसीआर साइकिल है जो कि ऑपरेट कर रही है दो टेम्परेचर के बीच में 35 और -10, एंड जो उसका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको मिल रहा है वो 15 का। यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे बोला गया अगर कंप्रेसर की एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 0.75% है तो इसका कंप्रेसर का वर्क कितना रहेगा, कंप्रेसर को काम करने के लिए कितना पावर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो अभी तक जो हमने साइकिल देखी थी वो हमने आइडियल साइकिल देखी थी, और वहां पे इमेजिन किया था कंप्रेसर जो है वो हमारा आइडियल कंप्रेसर है, मतलब वो मैक्सिमम सॉरी वो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड ले रहा है, इसलिए हमने कंप्रेशन को आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इज गिवन, इट इज नॉट 100%, इट इज हाउ मच, 75%। 75 होने के कारण अब ये यहाँ पे जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो आइडियल नहीं है, यहाँ पे कंप्रेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो हमें अलग फॉर्मूला, हमें यहाँ पे एक्चुअल कंप्रेसर वर्क को निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला से जो हमको कंप्रेसर वर्क मिल रहा है वो हमको आइडियल वर्क मिल रहा, थ्योरेटिकल वर्क मिल रहा, उस थ्योरेटिकल को हमको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल वर्क में कंप्रेसर के, जो कम रहेगा थ्योरेटिकल से। हम सॉल्व करते प्रॉब्लम को, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज गिवन एज द m into H1 minus H4, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। अब इसमें वैल्यू को पुटअप करो, हाउ विल पुट अप द वैल्यू, see here, refrigerating effect is given here, how much is the refrigerating effect, it is 15, ऊपर लिखा हुआ है ये 15, तो इसको यहाँ पे 15 को पुट करो। नाउ दिस m is unknown to us, ये हमको नहीं पता कितना है, तो बट वी नो द वैल्यू ऑफ H1 एंड H4। यहाँ पे देखो H1 की वैल्यू दी हुई, दैट इज 400 हियर, देन वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ H4 आल्सो, इट इज 250, उसको पुट अप करो। अब ये पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट, we will get the mass of the refrigerant, that is 0.1 kg per second। हमने मास क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्रेसर का पावर निकालना है। कंप्रेसर का पावर काय में निकालना है, we have to find the compressor power in kilowatt, right? अगर किलोवाट में कंप्रेसर का पावर हमको निकालना है तो we require the mass there, तो मास हमको चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मास निकाला from the relation of refrigerating effect, right? Now we'll see how to find the power of the compressor। compressor powers के लिए फॉर्मूला क्या है, we know again, it is equals to mass of the refrigerant, right, into difference of enthalpy at 2 point, that is 2 and 1। ये देखो ये कंप्रेसर का वर्क है, यहाँ पे 2 और h,
इन दोनों के बीच में की जो एंथैल्पी डिफरेंस रहेगा दैट इज H2 माइनस H1, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास ऑफ रेफ्रिजरेंट से, तो विल गेट वर्क ऑफ कंप्रेसर। तो हम वी नो एवरीथिंग, तो हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं। सबसे पहले हमने मास जो निकाला 0.1, उस मास को हम पुट करते हैं, विल पुट दी मास, यहाँ पे पुट किया हमने। देन H2 475, H1 की वैल्यू 400 जो यहाँ से हमको दी हुई है, उससे हमारा वर्क ऑफ कंप्रेसर कितना निकाला 7.5 किलोवाट। बट दिस 7.5 किलोवाट ये हमारा थ्योरेटिकल वर्क है। थ्योरेटिकल वर्क क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्रेसर की एफिशिएंसी इज गिवन। व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इज गिवन, इसका मतलब हम यहाँ पे 100% एफिशिएंसी हमको अज्यूम नहीं करना, जो एक्चुअल दी हुई वो एक्चुअल अज्यूम करना है, विच इज 75%। तो एक्चुअल एफिशिएंसी के लिए हमको अभी एक्चुअल कंप्रेसर वर्क फाइंड करना पड़ेगा, और वो फाइंड करने के लिए हमें रिलेशन यूज करना पड़ेगा, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। It is given by the relation theoretical compressor work upon actual compressor work, and therefore actual compressor work will be theoretical compressor work upon isentropic compressor work। और theoretical compressor work कितना है, it is 7.5 किलोवाट। it is 7.5 किलोवाट, उसको हम डिवाइड करेंगे 0.75 से, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 75 we will get how much, we will get 10 किलोवाट। So 10 kilowatt is the answer here। तो जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 10 किलोवाट, इट इज द आंसर। ये 10 किलोवाट कैसे आ गए, 10 किलोवाट अब यहाँ पे कैसे आ गया, इट इज द 7.5 अपॉन ये हो गया आपका थ्योरेटिकल कंप्रेसर वर्क, उसको हमने मल्टीप्लाई किया कंप्रेसर एफिशिएंसी से, विच इज 0.75, दैट इज 75%, राइट। और ये जो रेशियो बाद में आया, इट इज हाउ मच, 10 किलोवाट, and it is our answer। it is our answer। this way you can find। next question we'll see। In the next question, see, a refrigerator operates between 120 kilopascal and 800 kilopascal in an ideal VCR cycle with refrigerant 134 as a refrigerant। अब यहाँ पे कौन सा रेफ्रिजरेंट आपने यूज किया, इट इज गिवन टू यू स्टूडेंट, राइट, दैट इज 134 रेफ्रिजरेंट को यूज किया गया। कौन से, पहले केस में मैंने टेम्परेचर दिया था, यहाँ पे प्रेशर इज गिवन। वो जो ऑपरेशन हो रहा है वो दो प्रेशर पे हो रहा है। वन इज लो प्रेशर, इज दैट लो प्रेशर मतलब प्रेशर इन द इवापोरेटर दैट इज 800 किलो पास्कल, और हाई प्रेशर कितना है 120 किलो पास्कल, दैट इज द प्रेशर इन द कंडेंसर। एंड साइकिल इज आइडियल VCR साइकिल। द रेफ्रिजरेंट एंटर द कंप्रेसर एज अ सैचुरेटेड वेपर एंड लीव्स एज अ सैचुरेटेड लिक्विड। मतलब किस कंडीशन पे वो कंप्रेसर से बाहर निकलेगा और कंडेंसर से बाहर निकलेगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आइडियल कंडीशन है। देन द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज 0.2 kg पर सेकंड इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग। और उस रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज को इस टेबल में दी हुई है। जनरली क्या होता है कि दिस प्रॉपर्टीज आर गिवन इन द टेबल, लेकिन गेट एग्जाम में आपको टेबल यूज करने की परमिशन नहीं होती है। देयरफॉर यहाँ पे उस रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, जैसे यहाँ पर दी हुई है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज आस्क्ड हियर। हाँ, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेट एट विच हीट इज एक्सट्रैक्टेड। आपको क्या फाइंड करना है कि कौन से रेट से हीट का एक्सट्रैक्शन हुआ है। एक्सट्रैक्टेड मतलब amount of heat absorbed, that is nothing but the refrigerating effect। amount of heat extracted is nothing but the refrigerating effect, and that refrigerating effect you have to find in kilojoules per second। so we'll find, so again see this is a pH chart। ये pH charts आपको इसकी जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए। so refrigerating effect is given by the relation, which relation, that mass of the refrigerant into H1 minus H4। put the value, what is the value of H1। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ उस लाइन को पढ़ो। रेफ्रिजरेंट एंटर द कंप्रेसर एज अ सैचुरेटेड लिक्विड। अब विच इज द इनलेट टू कंप्रेसर, यहाँ पे इनलेट टू कंप्रेसर इज पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 है इनलेट टू कंप्रेसर। बट यहाँ पे कंडीशन कैसी है, सैचुरेटेड वेपर, इसलिए पॉइंट नंबर 1 को मैंने, सैचुरेटेड वेपर लाइन है ना, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन पे पॉइंट नंबर 1 को लिया गया। और दूसरा क्या बोला उन्होंने, इट लीव्स द कंडेंसर एज अ सैचुरेटेड लिक्विड। कंडेंसर है, कंडेंसर का आउटलेट कौन सा है, ये पॉइंट नंबर 3 कंडेंसर का आउटलेट है। और वो कैसे लीव कर रहा है, कंडीशन क्या है उसकी, सैचुरेटेड लिक्विड। अगेन दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन,
लिक्विड लाइन है, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 आपको लेना पड़ेगा कर्व पे, विच इज द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर एज पर द डेटा गिवन, राइट। सो और ये जो प्रॉपर्टी गिवन इन टेबल में, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सैचुरेशन कंडीशन। जैसे आप बोलोगे सर पॉइंट नंबर 2 की प्रॉपर्टी चाहिए, तो पॉइंट नंबर की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। व्हाई? बिकॉज पॉइंट नंबर 2 इज इन सुपरहीटेड रीजन, और ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी है, जो आपको ये टेबल में दिख रही है। तो सैचुरेशन कंडीशन मतलब द पॉइंट ऑन द सैचुरेशन लाइन ओनली, मे बी लिक्विड और मे बी वेपर। तो हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को फाइंड करते हैं, mass equals to H1 minus H4. So put up the value. Here mass is given. How much is the mass? Mass is 0.2 kg per second. उसको put up करो and get the refrigerating effect. अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वैल्यूज को आपने कैसे ली। डायरेक्टली अगर यहाँ पे चार्ट पे अगर वैल्यू दी रहती तो हम लेते, हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट हियर द वैल्यू इज नॉट गिवन ऑन द चार्ट, इट इज गिवन इन द टेबल। और टेबल से हमको देखना है कि H1 कौन सा है, H4 कौन सा है। मैं आपको बताता हूँ भी। Now H1, what is H1? H1 is this point. ये point कौन सा है? This is a saturated vapor. ये जो H1 नंबर का point कौन सा है? It is a saturated vapor. But ये saturated vapor कहाँ पर है? लो प्रेशर पे है कि हाई प्रेशर पे है? This saturated vapor we are taking at low pressure, that is 120. 120 प्रेशर, 120 कहाँ पर है ये? मतलब इस रो में आपको देखना है सैचुरेटेड वेपर, एंड सैचुरेटेड वेपर इज गिवन एज Hg। Hg का मतलब होता है सैचुरेटेड वेपर। ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये नोटेशन आपको पता रहने को ना। Hg का मतलब होता है सैचुरेटेड वेपर, और ये हम ले रहे हैं 120 प्रेशर के ऊपर। तो 120 के ऊपर ओवर द सैचुरेशन प्रेशर इट इज 237। तो देखो यहाँ पे मैंने H1 की वैल्यू कितनी ली है, यहाँ पे 237 लिया है। देन H4 क्या है यहाँ पे? हियर H4 इज नथिंग बट, अब ये जो H4 है, आप बोलोगे सर H4 तो सैचुरेशन कंडीशन पे नहीं है, it is not on the saturation line, but H4 is equals to H3 being a isoenthalpy line। H4 और H3 दोनों सेम है, और H3 नंबर का पॉइंट कहां पर आ रहा? सैचुरेशन लिक्विड लाइन के ऊपर आ रहा। तो हम यहाँ पे टेबल से प्रॉपर्टीज ले सकते हैं H3 के ऊपर। एट H3 के लिए प्रेशर कौन सा है? फॉर H3 प्रेशर इज 800, मतलब यहां से हमको लेना पड़ेगा। इसकी कंडीशन कौन सी है? लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, और सैचुरेटेड लिक्विड को शो किया जाता है HF से। HF at 800, how much? 95.5। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू ली गई है 90.5। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर आएगा दैट विल बी 28.3। आंसर विल बी 28.3। तो ये रहेगा आपका आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड। जो लिखा ना यहाँ पे, हीट एक्सट्रैक्टेड इन किलोजूल्स पर सेकंड, इट विल बी 28.3 किलोवाट। दिस इज द आंसर। नाउ सेम क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी है? सुपरहीटेड की है, सैचुरेटेड की नहीं है, सुपरहीटेड की है। व्हाट इज आस्क्ड? द पावर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्रेसर। अभी हमको निकालना है पावर। पावर के लिए फिर से पीएच चार्ट लेते हैं। कंप्रेसर का पावर, कंप्रेसर कहाँ पे काम करता है, कंप्रेसर कहाँ पे शो किया? ये यहाँ पे, दिस इज द कंप्रेसर रीजन। और हमें एंथैल्पी डिफरेंस कैसा लेंगे? H2 minus H1। So we'll find the work of compressor as given, it is given as W equals to M। M is the mass of refrigerant into H2 minus H1। क्या रहेगा फॉर्मूला? H2 minus H1। So पुटिंग द वैल्यू, हमें पता है M1 कितना है, दैट इज 0.2। H2 कितना है यहाँ पे? हमने कितना लिया H2 हमने लिया यहाँ पे 276। कहाँ से लाया? H2 मतलब ये पॉइंट, ये कहाँ पर है? सुपरहीटेड रीजन में। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट प्रेशर? 800। तो निकालो 800 सुपरहीटेड। ये एंथैल्पी, एंथैल्पी एट 800 हाउ मच? 276। तो एक ही यहाँ पे एंथैल्पी है, उसको हम पुट अप करते हैं यहाँ पे 276। और H1 कितना है? H1 हमको लेना है अभी। H1 पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कहाँ पर है? सैचुरेटेड वेपर लाइन पे। सैचुरेटेड वेपर लाइन Hg, जो हमने पहले टेबल से लिया था Hg, वो कहां पर रहेगा? वो हमको लेना है 120 पे ऊपर, 120 प्रेशर के ऊपर। वी हैव टू टेक Hg प्रीवियस टेबल से। वो प्रीवियस टेबल यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रीवियस टेबल से हमको 120 प्रेशर पे, 120 प्रेशर पे हमको क्या लेना है? Hg लेना है, एंड दैट इज इक्वल टू 237 जो टेबल में गिवन था। और इसको हम सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 7.8 किलोवाट। इट्स द आंसर। So answer for this question, that is power required for the compressor to develop that much amount of reflecting effect. It is how much? 7.8 is the kilowatt. Answer.
Next question. Round the clock cooling of the apartment having load of 300 megajoules, right? It is a megajoules per day requires an air conditioning plant of a capacity. यहाँ पे क्या बोला गया? Find the capacity of the plant to maintain the refrigerating effect of 300 megajoules of cooling effect per day. राइट, अब उसके लिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ हमको क्या बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट, वो जूल्स में है और पूछा काय में टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में पूछा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, जूल्स को टीआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट व्हाट इज गिवन, कूलिंग लोड इज गिवन 300 मेगा जूल्स पर डे, इट इज गिवन। इस मेगा जूल को हम कन्वर्ट करते हैं जूल्स पर सेकंड में। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, कूलिंग लोड इन किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या हो गया, किलोवाट इज नथिंग बट किलो जूल्स पर सेकंड। दिस किलोवाट इज नथिंग बट किलो जूल्स पर सेकंड। यहाँ पे इसका मीनिंग किलो जूल्स पर सेकंड भी होता है, इस किलो जूल्स पर सेकंड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मेगा को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो में। तो ये दिस इज मेगा नथिंग बट 10 टू द पावर 6, ये 10 टू द पावर 6 है। तो इसको हमें यहाँ पे कन्वर्ट कर किलो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 300 एज इट इज, और यहाँ पे मैंने 10 टू द पावर 3 किया, दैट इज ये, जिसके कारण ये मेगा जूल्स हो गया कन्वर्ट, काय में हो गया, किलो जूल्स में कन्वर्ट हो गया। और वो हमें निकाल, यहाँ पे पर डे दिया हुआ है, हमको निकालना है पर सेकंड। पर सेकंड के लिए सबसे पहले मैं पर डे मतलब 24 आवर से डिवाइड करूंगा और फिर आवर को कन्वर्ट करूंगा मिनट में। तो ये मिनट के बाद उसको करूंगा सेकंड में, इसलिए 60 इंटू 60 से उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। आई विल गेट द आंसर इन किलोवाट और किलो जूल्स पर सेकंड। और वो आंसर कितना आ रहा है, वो आंसर आ रहा है 3.5 किलोवाट। तो कूलिंग लोड हमने निकाला 3 किलोवाट में। अब ये कूलिंग लोड को हमें कन्वर्ट करना है टर्म्स में। तो हमें एक रिलेशन पता है, वो रिलेशन क्या है, 1 TR इक्वल टू 3.5 किलोवाट। So this 3.4 kilowatt is nothing but how much? It is equivalent to 1 TR. It is equals to 1 TR. So which is nothing but our answer. So our answer is 1 TR. In this way, answer will be A. Right? So means for a plant in a given condition, air condition of 1 TR will be required to have the cooling of 300 megajoules per day. अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है और आपको पूछा कि नेम दिस चार्ट, वेदर दिस चार्ट इज अ प्रेशर, एंथैल्पी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर, एंट्रोपी और टेम्परेचर, एंथैल्पी। ये जो दिया ना यहाँ पे, ये चार्ट के कुछ नाम दिए हुए, आपको बताना है इस चार्ट का नाम क्या है। तो तो यहाँ पे क्या लिखा, वेपर कंप्रेशन साइकिल इज रिप्रेजेंटेड शोन इन द फिगर विथ स्टेट 1 बीइंग एग्जिट ऑफ द इवापोरेटर। ये जो पॉइंट 1 है, इट इज एग्जिट ऑफ द इवापोरेटर। द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन दिस फिगर इज, मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब यहाँ पे एक्स और वाई पे क्या है आपको बताना है। अब वैसे देखा जाए तो मुझे चार्ट एक कॉम्बिनेशन लगता है टीएस और पीएच चार्ट, मतलब जो वीसीआर साइकिल हम शो करते हैं ना, ये पीएच चार्ट जैसा मुझे लगता है, बट इट इज नॉट अ पीएच चार्ट। क्योंकि आपको पता है पीएच चार्ट में क्या होता है, इन द पीएच चार्ट आपको, ये पीएच चार्ट है, इन द पीएच चार्ट यू गेट द प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट इन द कंडेंसर। ये जो कंडेंसर है ना, कंडेंसर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है क्या, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट हियर। देखो प्रेशर यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब ये प्रेशर तो नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट अ प्रेशर। सेकंड, एंट्रोपी आप देखोगे तो एंट्रोपी के साथ ये लाइन थोड़ी मैच हो रही है, जो लाइन है ना, इट इज मैचिंग विद द एंट्रोपी। इसका मतलब ये थोड़ा मुझे टेम्परेचर जैसे दिख रहा है यहाँ पे, राइट। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मुझे थोड़ा एंथैल्पी जैसे दिख रहा है यहाँ पे, एंथैल्पी। और एंथैल्पी कहाँ पे कांस्टेंट रहती है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है प्रेशर एंथैल्पी में। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हो गया, और यहाँ पे मुझे एंथैल्पी दिख रही है। तो मतलब ये चार्ट को मैं बोलूंगा टेम्परेचर एंथैल्पी चार्ट। सो फिर से देखो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस 3-4 इज अ वर्टिकल that is at a constant enthalpy, so x axis must be showing enthalpy। मतलब यहाँ पे क्या रहेंगे, there should be a enthalpy। why enthalpy? because ये जो लाइन है कांस्टेंट वर्टिकल लाइन, वो हमको x एक्सिस पे कांस्टेंट दिख रही है। सेकंड, कंडेंसेशन प्रोसेस P इज अ कांस्टेंट, जनरली कंडेंसेशन प्रोसेस कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे कांस्टेंट लाइन नहीं दिख रही है। अगर हम इसको प्रेशर बोलता हो तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन नहीं है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम शो करते हैं टीएस चार्ट पे, ये हो सकती है। तो मतलब एक्स वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, देयरफॉर इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर एंथैल्पी चार्ट। ये फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल स्पेसिफिक एंथैल्पी इज गिवन, राइट। आपको क्या पूछा गया, फाइंड द सीओपी ऑफ द साइकिल। एक
पीएच चार्ट है, पीएच चार्ट पे आपको डिवाइस के हर एक पॉइंट पे यू आर गिवन द एंथैल्पी। आप कहाँ पे एंथैल्पी दी हुई, पहले जो सबसे पहला एग्जाम था वीसीआर साइकिल का, उसने आपने देखा था कि डायरेक्टली पीएच चार्ट पे पॉइंट नंबर 1 2 3 पे उन्होंने क्या, उन्होंने एंथैल्पी दी थी। तो यहाँ पे इन्होंने इन टर्म्स ऑफ पॉइंट एंथैल्पी नहीं दी हुई, उन्होंने नाम दे के एंथैल्पी दी हुई। जैसे कंडेंसर के इनलेट पे कितनी रहेंगी 283, एग्जिट पे कितनी रहेंगी 116 किलो जूल्स पर केजी, और एग्जिट ऑफ द ऑपरेटर 237। अब आप देखो, आपको इस फॉर्मूला से क्या करना है, सीओपी निकालनी है। अब सीओपी निकालने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, पहले यहाँ पे पॉइंट को नाम देना पड़ेगा। तो इनलेट टू द कंडेंसर कौन सा रहता है, इनलेट टू द कंडेंसर इज पॉइंट नंबर 2। देन एग्जिट टू कंडेंसर हम कैसे लोकेट करते हैं, पॉइंट नंबर 3। और एग्जिट टू यू ऑपरेटर हम शो करते हैं पॉइंट नंबर 1, राइट। तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 इज द एग्जिट टू यू ऑपरेटर। तो यहाँ पे एंथैल्पी कितनी रहेंगी 232। देन पॉइंट नंबर 2 इज द एग्जिट टू द कंडेंसर, यहाँ पे एंथैल्पी कितनी रहेंगी, ये जो है ना, इट इज नॉट द कंडेंसर, इट इज अ कॉम्प्रेसर, ये कॉम्प्रेसर है, दिस इज अ कॉम्प्रेसर। अगेन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, इट इज अ कॉम्प्रेसर। तो यहाँ पे कितनी एंथैल्पी है, यहाँ पे एंथैल्पी है 283। एंड देन लास्ट एग्जिट टू इवापोरेटर, एग्जिट टू इवापोरेटर कितनी एंथैल्पी 237। तो यहाँ पे एग्जिट टू इवापोरेटर मतलब पॉइंट 2 पे इतने, यहाँ पे कितनी आएंगे एंथैल्पी 232। एंड एग्जिट टू कंडेंसर मतलब पॉइंट नंबर 4, सॉरी पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे कितने रहेंगे एंथैल्पी, इट विल बी 2, सॉरी इट विल बी 116। एंड जो एंथैल्पी 3 पे रहेंगी वही 4 पे रहेंगी, तो पॉइंट नंबर 4 पे हम एंथैल्पी लेंगे 0.116, राइट। तो अब सीओपी का फॉर्मूला, बस वहां पे आपको एंथैल्पी पुट करनी है, सीओपी इक्वल्स टू H1 माइनस H4, H2 माइनस H1। तो H1 इज हाउ मच, H1 यहाँ पे लिखी हुई देखो, what is H1, H1 is the how much enthalpy 232, so that is exit of the evaporator, H1 is the exit of the evaporator, so enthalpy be 237 minus H4, H4 is nothing but H1, H3 कितनी आ रही वहां पे 116, तो यहाँ पे 116 लिखा मैंने। then H2, H2 is the exit of the compressor, how much is the enthalpy 283, यहाँ पे 283 लिखा, and then H1 is 237। ऐसा करके इसका जो आंसर आएगा that will be 2.27 is the answer, 2.27 kilojoules per kg is the answer which is given in the slide. So now you'll see little bit about the refrigerant. रेफ्रिजरेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज रेफ्रिजरेंट, इट इज अ वर्किंग मीडियम विच इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब द हीट at low temperature region, and whatever heat is absorbed it is rejected to a high temperature region, वहां पे रिजेक्ट होता है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी जो आइडियल रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, मतलब क्योंकि रेफ्रिजरेंट हमेशा आपको आइडियल नहीं मिलेगा। एग्जांपल कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल कैसे, इट इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल, but every time you will not, मतलब you will not get the 100% efficiency like in कार्नोट साइकिल, और एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम उसको कार्नोट साइकिल को यूज करते हैं। उसी प्रकार से रेफ्रिजरेंट की केस में भी यू विल नॉट गेट अ आइडियल रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट में हमेशा कुछ प्रॉपर्टी अच्छी रहती है तो कुछ बेकार भी रहती है। तो लेकिन अगर हमको आइडियल रेफ्रिजरेंट बोलने का रहा तो उस आइडियल रेफ्रिजरेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, वो प्रॉपर्टीज को हमको यहाँ पे देखना है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी है, अगर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट शुड बी वेरी वेरी लो, देन उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा वो बहुत ज्यादा रहने को ना, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम रहने को ना, राइट। देन उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहने को ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा रहने को ना, सो दैट अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड विल बी लेस, और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम उस रेफ्रिजरेंट का कम रहने को ना, सो दैट द साइज ऑफ द कंप्रेसर और साइज ऑफ द इवेपोरेटर छोटा रहे, उससे हमारा कॉस्ट भी सेविंग हो। ये होगी आइडियल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट। सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आइडियल केमिकल प्रॉपर्टीज शुड बी लाइक, इट शुड बी नॉन इन्फ्लेमेबल, उसने इट शुड नॉट कैच द फायर, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, वो पॉइजन से रहने को ना, इट शुड नॉट रिएक्ट ऑन द मेटल्स, राइट, और उसकी कोई स्मेल नहीं आने को ना, दैट इज इट शुड बी ऑर्डरलेस। और आखिरी प्रॉपर्टी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है इट शुड बी लो विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी का मतलब हो गया विस्कोसिटी लो है तो देयर विल बी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो, और वहां पे पावर लॉस नहीं होगा। देन इट शुड बी इमिजिबल विद द ऑयल, ऑयल के साथ उसने मिक्स नहीं होने को ना,
एंड अगर वहां पे लीकेज हो रहा है तो लीकेज शुड बी इजीली डिटेक्टेबल, ताकि जो लीक अगर हो रहा है तो हम इन टाइम उसकी प्रिकॉशन लेके उस लीक को बंद कर सके, ताकि उसमें कुछ लॉस ना हो हमारा। तो दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर अ पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट। देन डेजिग्नेशन सिस्टम फॉर द रेफ्रिजरेंट, हाउ द रेफ्रिजरेंट इज डेजिग्नेटेड, क्योंकि एमसीक्यू में रेफ्रिजरेंट के डेजिग्नेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एसआरई, एसआरई का मतलब होता है द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, उसके हिसाब से ना रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट किया जाता है इंटरनेशनली एक पर्टिकुलर नंबर से। वो जो नंबर रहता है दैट इज नंबर आर, फॉलोड बाय सर्टेन नंबर। दिस नंबर कैन बी अ 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, लाइक R12, R22, R134। अब यहाँ पे आप देखोगे आर स्टैंड फॉर रेफ्रिजरेंट, वो नंबर दिखा रहा है, और जो दूसरी जो टर्म है 112, 22 और 134, ये हमको डिफाइन करता है कि दीज आर टेकन फ्रॉम इथेन बेस और मिथेन बेस। अगर 2 डिजिट नंबर है लाइक 12 और 22, इसका मतलब दे आर टेकन फ्रॉम मिथेन बेस। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो दे आर टेकन फ्रॉम इथेन बेस। राइट, तो आपको देखना है इतना यार, अगर मिथेन बेस है तो मिथेन बेस के लिए जो नंबर ऑफ कार्बन को इमेजिन करना है दैट इज 1। यहाँ पे देखो C1 है, और अगर इथेन बेस से लिया गया मतलब 3 डिजिट वाला है तो वहां पे जो कार्बन रहेंगे दैट इज 2 नंबर, कार्बन एटम रहेंगे दैट इज 2। इतना सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है। सो जनरल केमिकल फॉर्मूला फॉर रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट को जो केमिकल नेम देते हैं, केमिकल फॉर्मूला देते हैं, वो इट इज एज पर वो उसको हम देते हैं इसके हिसाब से। ये जो आपको दिख रहा है जनरल फॉर्मूला है, और इस जनरल फॉर्मूला के हिसाब से उसको हम केमिकल फॉर्मूला देते हैं, दैट इज C सफिक्स M, H सफिक्स N, Cl सफिक्स P एंड F सफिक्स P। अब ये M एंड PQ की वैल्यू क्या है? C स्टैंड फॉर कार्बन, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, Cl स्टैंड फॉर क्लोरीन एंड F स्टैंड फॉर फ्लोरीन। ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं रेफ्रिजरेंट में, और दिस शुड सेटिस्फाई इक्वेशन N प्लस P प्लस Q इक्वल्स टू 2M प्लस 2। भाई NP क्या है? M का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट, दैट इज C। N का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज H। P का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लोरीन, दैट इज Cl। और Q का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम Q, विच इज डिनोटेड बाय F। एंड ये तो मैंने आपको जो ऊपर बताया था रिलेशन, ये जो ऊपर का जो रिलेशन है उससे हम क्या डेजिग्नेट करते हैं? ये रिलेशन से हम केमिकल फॉर्मूला को डेजिग्नेट करते हैं। और एक नीचे रिलेशन दिया हुआ दैट इज RM-1 N+1 Q, इससे हम क्या डेजिग्नेट करते हैं? रेफ्रिजरेंट को नंबर। तो रेफ्रिजरेंट को नंबर देने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे R वाला, और उसको केमिकल फॉर्मूला डेजिग्नेट करने के लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला। और ये जो M-N-P की नंबर, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला इक्वेशन यूज करेंगे, ये इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ NPQM। ये 3 चीज हमको यहाँ पे यूज करके और रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट करना है। और कैसे हम कर सकते हैं उसका मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एग्जांपल है, फाइंड द केमिकल फॉर्मूला एंड रेफ्रिजरेंट नंबर 2 और रेफ्रिजरेंट हुज नेम इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ये डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन के लिए हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है रेफ्रिजरेंट का नंबर और रेफ्रिजरेंट का केमिकल फॉर्मूला। तो विल प्रोसीड। तो जनरल फॉर्मूला हमें पता है, दिस जनरल फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस रिलेशन Cm Hn Clp Fq, ये हमने पहले देखा है। अब इसमें हम क्या करते हैं? विल फाइंड द वैल्यू ऑफ MnQp की। और वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो, पहले M कैसे फाइंड करेंगे? हमें पहले चेक करना है किसके बेस से है, वेदर इट इज अ मिथेन बेस और इथेन बेस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? देखो यहाँ पे लिखा है इथेन, आखिरी में इथेन लिखा, मतलब इट इज टेकन फ्रॉम द ये इथेन, इट इज अ मिथेन, सॉरी फिर से गलत हो गया यहाँ पे, इट इज अ डाइक्लोरो, सॉरी ये मिथेन है, ये देखो ये मिथेन M, इट इज टेकन फ्रॉम मिथेन बेस। तो मिथेन का मतलब क्या होगा? इट इज फ्रॉम CH4 ग्रुप। अब C में कितने एटम है? C का एटम कितना है यहाँ पे? 1। C का एटम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, M की वैल्यू कितना लिया? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना लिया मैंने? यहाँ पे 1 लिया। Why 1? बिकॉज इट इज फ्रॉम मिथेन बेस एंड वैल्यू ऑफ C कार्बन इज हाउ मच? 1। तो यहाँ पे मैंने 1 दिया। देन P, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। P का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इसमें ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या लिखा? डाइक्लोरो। डाइक्लोरो का मतलब क्लोरीन कितने हो गए? डाई का मतलब 2। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने यहाँ पे? 2 है। देन क्यू मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन कितना है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या लिखा? डाइफ्लोरो। डाइफ्लोरो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम हाउ मच? अगेन 2। तो यहाँ पे Q इक्वल टू 2। अब व्हाट इज अननोन हियर? अननोन इज N। N यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो N को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? विल यूज द रिलेशन दैट Mn प्लस P इक्वल्स टू M प्लस 2।
n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m+2। इसमें वैल्यू पुटअप करो एंड वैल्यू पुटअप करने के बाद जो अननोन है उसकी वैल्यू हमको मिलेगी। दैट वैल्यू ऑफ अननोन इज हाउ मच? 0। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू एम, इसको अगर सॉल्व करोगे तो दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 0 है, n इक्वल टू 0। अब ये हो गया। अब हमको निकालना केमिकल फॉर्मूला, तो ये वैल्यू आपको जनरल फॉर्मूला पुटअप करना है केमिकल के। और उसका अगर रेफ्रिजरेंट नंबर फाइंड करना है तो रेफ्रिजरेंट नंबर के लिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में वो वैल्यू पुटअप करना है। तो विल पुट अप दिस वैल्यू हियर फर्स्ट। तो सी आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? m-1। m की वैल्यू पुटअप करो। m कितना है? m इज 1, तो 1 यहाँ पे पुट किया मैंने। m-1 ऑलरेडी यहाँ पर है। देन n इज 0, +1 गिवन, तो +1 कर दिया यहाँ पे। q कितना है यहाँ पे? q इज 2, 2 को यहाँ पे पुटअप कर दो। कितना आएगा वो? R012। R012 इज नथिंग बट R12। तो ये जो नाम है रेफ्रिजरेंट का, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये क्या है? इसका रेफ्रिजरेंट नंबर कितना है? R12। अब इसका केमिकल फॉर्मूला भी हम देते हैं। केमिकल फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला क्या है? CmHnClPFQ। इसको पुटअप करो यहाँ पे। तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू हियर, अच्छा ये थोड़ा यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूं। कैसा करेंगे? सी m की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ m इज हाउ मच? m इज 1, तो यहाँ पे आएगा 1। देन h की वैल्यू कितनी है? h मतलब n इज 0, तो इट विल बी 0। देन Cl इज हाउ मच? 2, Cl इज 2। एंड f इज ऑल्सो 2, f इज ऑल्सो 2। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज C, राइट? H0 मतलब h को निगलेक्ट कर दो। Cl2 and F2. So this is the chemical formula for refrigerant dichloro-difluoromethane. तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे और आपको उस नेम से आपको रेफ्रिजरेंट का नंबर और रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला पूछा था। अब एक एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं जहां पे आपको रेफ्रिजरेंट नंबर इज गिवन, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द केमिकल फॉर्मूला एंड नेम। कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे। तो ये जो रेफ्रिजरेंट नंबर इज गिवन, इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट नंबर के साथ, दैट इज Rm-1 n+1 Q के साथ। तो करने के बाद आपको क्या मिलेगा? m-1, ये जो पहली टर्म है m-1 कितनी है यहाँ पे? m-1 इज 1। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ, देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 2 मिल जाएगा आपको m की वैल्यू। देन n+1 कितना आ रहा है यहाँ पे? 3 आ रहा, तो n+1 3 मतलब n इक्वल टू 2, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ n। एंड आखिरी q कितना आ रहा है यहाँ पे? 4, तो q विल इक्वल टू 4। तो अब बचा का यहाँ पे वी डोंट नीड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू हमें नहीं पता, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन वी विल यूज दिस रिलेशन। तो रिलेशन में वैल्यू पुटअप करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे पुट करने के बाद हमको वैल्यू कितनी मिली p की? तो p इज हाउ मच? 0। अब p की वैल्यू आपको जनरल जो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, उसमें पुट करना है। तो विल पुट द वैल्यू इन द केमिकल फॉर्मूला, दैट इज CmHnClPq। तो हमें क्या मिलेगा? हियर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द टर्म्स m and pq इन द फॉर्मूला, तो m कितना आ रहा है यहाँ पे? 2। देन n इज हाउ मच? 0। देन p इज हाउ मच? 2 एंड f इज 4। इसको रीअरेंज करने के लिखने के बाद यू विल गेट C2H2F4 एंड दिस, इसको नाम देंगे हम, व्हाट विल द नेम? टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन, क्योंकि C2H2 ये इथेन बेस आ गया। फिर से यहाँ पे देता मैं आपको, ये C2H2 इथेन बेस, तो यहाँ पे इथेन लिखा मैंने। F फ्लोर इज चार फ्लोरीन है, मतलब कौन सा आ गया? टेट्राफ्लोरो। इट इज अ टेट्राफ्लोरोइथेन, इट इज द नेम ऑफ द रेफ्रिजरेंट। So same question was asked in MCQ question of GATE, that is environmental friendly refrigerant is 134A, used in the new generation domestic refrigerator. Its chemical formula is, ये यहाँ पे देखो chemical formula दिख रहा है, आंसर D। तो उसका solution वही रहेगा जो भी आपको मैंने बताया। Now last portion of this GATE lecture, that is air conditioning, या इसको हम 5-10 मिनट में complete करते हैं। So what is air conditioning? Again, study of conditioning of the air. Conditioning, that is supplying and maintaining the desirable internal atmospheric conditions as regard to its temperature, moisture content, purity, whatever irrespective of the external condition. मतलब external condition कुछ भी रहे, whatever may be external condition, लेकिन जो condition human को desired है to feel the comfort, उस condition के ऊपर air को supply करना और उसको maintain रखना, उसको बोलते हैं air conditioning. So it deals with the
properties of the moist air, right? What is psychometry? Psychometry is the properties of the dry air mixed with water vapor, that is called moist air. What is psychometry? Psychometry, it is a science which deals with the properties of moist air. एक ऐसा साइंस जो मॉइस्ट एयर के प्रॉपर्टी के साथ डील करता है एयर कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड साइकोमेट्री. Then psychometric chart, it is a kind of chart from which you can find out the various properties of the moist air. एक ऐसा चार्ट जिससे आप मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टी को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक चार्ट. दिस इज अ काइंड ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट. कुछ साइकोमेट्रिक टर्म देखते हैं हम. ड्रायर, ड्रायर मतलब एयर जिसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी नहीं होती है, तो एयर विदाउट मॉइस्चर इट इज कॉल्ड ड्राई एयर. देन मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर, that is called humidity. Humidity or moisture, amount of water vapor present in the air, it is called moisture. And this moisture की जो quantity होती है, it varies from 0 to maximum. अगर 0 है तो उसको बोलते हैं हम dry air, अगर maximum है तो उस air को हम बोलते हैं saturated air. Then humidity और specific humidity, उसका formula है humidity मतलब the amount of water vapor present in given amount of dry air. मतलब जो ड्रायर का सैंपल है आपके पास, उसमें अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितने हैं इन केजी, राइट? तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इट इज एक्सप्रेस इन ग्राम पर केजी ऑफ ड्रायर. लेकिन अगर उस सैंपल को मीटर क्यूब में एक्सप्रेस किया गया तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. सो इट इज अ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्रायर एंड इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर ग्राम पर मीटर क्यूब. मतलब ग्राम पर केजी इट इज अ ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, and gram per meter cube it is the absolute humidity. Then relative humidity, very important parameter, it is a ratio of amount of water vapor actually present divided by the greatest amount of possible of moisture in the air at the same condition. मतलब क्या हो गया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? अगर आपने एक सैंपल दिया, उस सैंपल में कितने मॉइस्चर है उस टेम्परेचर पे, डिवाइडेड बाय सैचुरेशन कंडीशन पे कितने मॉइस्चर रह सकते हैं एट द सेम टेम्परेचर, इसका जो रेशियो रहेगा दैट ह्यूमिडिटी. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें अभी आप 20% मॉइस्चर स्टिल यू कैन ऐड टू मेक इट फुल्ली सैचुरेटेड. इसका मतलब ये हो गया. तो व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सैचुरेटेड एयर? इट इज 100%. So 100% relative humidity means that air is totally saturated with water vapor and cannot hold any more amount of water vapor in it. इसका मीनिंग हो गया. So it is expressed in percentage. Then temperature, dry bulb temperature, it is the ordinary temperature measured by the ordinary thermometer. That is a dry bulb temperature, मतलब थर्मोमीटर से आप जो भी टेम्परेचर मेजर करते हो, that is called dry bulb temperature. देन वेट बल्ब टेम्परेचर, अगर बल्ब का टेम्परेचर हमने गीला किया फिर टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर. एंड सिग्निफिकेंस क्या है कि वेट बल्ब टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि जो एयर कांटेक्ट में आ रही है वो कितना ड्राई है या कितना ह्यूमिड है. इट गिव्स द अमाउंट ऑफ ड्राइनेस एंड ह्यूमिडिटी ऑफ अ एयर विच इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द वेट बल्ब. अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ वेट बल्ब हमें पता चलता है कि एयर जो कॉन्टेक्ट में आ रही है वो ड्राई है या फिर ड्राई नहीं है, ह्यूमिड है. In wet bulb depression, it is a difference between the dry bulb temperature and wet bulb temperature. So, if the air is fully saturated, then your wet bulb depression is 0. Why 0? Because अगर saturated air है तो वहां पे उसका evaporation नहीं होगा, और evaporation नहीं होगा तो wet bulb temperature and dry bulb temperature will be same. दोनों में फर्क नहीं, और फिर दोनों अगर सेम है तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा. इसका मतलब thus the wet bulb depression is a measure of dryness of the air, and more the dry air, more will be the wet bulb depression. Dew point temperature, dew point temperature किसको बोलते हैं? टेम्परेचर at which the water vapor contained in the air sample just start to condense. एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, वो अंदर के वाटर वेपर का, वाटर एयर में जो वाटर वेपर होते हैं उसका जो कंडेंसेशन, ऐसा टेम्परेचर जहां पे वो वाटर वेपर कंडेंस होते हैं उसको बोला जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. तो एक साइकोमेट्रिक चार्ट, आखिरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोमेट्रिक चार्ट में. ये साइकोमेट्रिक चार्ट से क्या पता चलता है? ये साइकोमेट्रिक चार्ट से हम इतनी प्रॉपर्टीज को फाइंड कर सकते हैं, लाइक ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, then saturation temperature, relative humidity, humidity ratio, volume and enthalpy. ये सारी प्रॉपर्टी ऑफ द मॉइस्चर हमको पता चलती है साइकोमेट्रिक चार्ट से. तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट है. यहाँ पे आप देखोगे पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हमको क्या देती है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर देती है. वर्टिकल लाइन हमें देती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो इट इज शोन हियर. एंड थर्ड लाइन है सैचुरेशन, जो कॉर लाइन है उससे हमें पता चलता है
वो सैचुरेशन कॉर है कि नहीं है। सैचुरेशन कॉर बताती है कॉर लाइन। सो ड्राइबल टेम्परेचर लाइन कैसी रहती है, जितनी भी वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, दिस इज अ सैचुरेशन लाइन। ऑल द वर्टिकल लाइन इज अ सैचुरेशन लाइन। So it is shown here. This all the vertical line is the dryable temperature line, and this dryable temperature is marked on the x-axis. So these are the dryable temperature line, vertical line which is marked on the x-axis. Then wet bulb temperature line. जितनी भी आपको incline line दिख रही है यहाँ पे, this incline line it is called wet bulb temperature line. And जो wet bulb temperature मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? You will get the wet bulb temperature on the psychometric core. Suppose you are here, ये इस पॉइंट पे मुझे wet bulb temperature फाइंड करना है, तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को फॉलो करना पड़ेगा अप टू सैचुरेशन कॉर, और यहाँ पे जो भी ड्राइबल टेम्परेचर दैट विल बी द वेट बल्ब टेम्परेचर फॉर दिस पॉइंट। सपोज पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज ए पॉइंट पे मुझे वेट बल्ब टेम्परेचर फाइंड करना है, तो आई विल व्हाट विल आई डू, आई विल फॉलो वन लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट ए पैरेलल टू वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को पैरेलल लाइन निकालूंगा मैं अप टू सैचुरेशन कॉर, और सैचुरेशन कॉर पे जो भी ड्राइबल टेम्परेचर रहेगा that will be the wet bulb temperature at point A। यहाँ पे कितना, it is about 68। यहाँ पे जो टेम्परेचर मुझे दिख रहा है it is 68, तो ये 68 रहेगा। 68 is the wet bulb temperature at point A, like this। then relative humidity, relative humidity को हमें एक कॉर लाइन से पता चलती है। तो अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए तो दिस 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज टेकन फ्रॉम द सैचुरेशन कॉर, और फिर उसके नीचे की जो कॉर है वहां से फिर हमें कम कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलती है। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कम कम होती जाएंगी। सो दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज टेकन फ्रॉम दी कॉर लाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर लाइन से आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल रही है। 100% यहाँ सैचुरेशन कॉर से मिलेगी, ये कॉर आपको 80% दे रही है, एंड दिस कॉर इज गिविंग यू द 45%। So in this way, relative humidity can be obtained. Then dew point temperature, like wet bulb temperature, dew point temperature भी हमको saturation core पे मिलता है, बट फर्क कहाँ पर है? फर्क सिर्फ इतना है कि वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए हमने क्या किया था, हमने इंक्लाइन लाइन को फॉलो किया था, बट यहाँ पे वेट बल्ब के लिए इंक्लाइन लाइन ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो करना है। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। ये जो लाइन दिख रही है कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहां पर मिलेगा, यू विल गेट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑन सैचुरेशन कॉर। तो सी इफ यू वांट टू फाइंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, से मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूं, यू वांट टू फाइंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे ड्यू पॉइंट फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है अप टू सैचुरेशन कॉर, और सैचुरेशन कॉर पे जो भी ड्यू पॉइंट ड्राइबल टेम्परेचर रहेगा, कितना ड्राइबल टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, ये है ऑलमोस्ट 60 तो नहीं होगा, थोड़ा कम है, 58। तो 58 इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट पॉइंट ए। अगर मुझे पॉइंट ए पे वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है, तो मैं वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए यहाँ पे इंक्लाइन लाइन वेट बल्ब टेम्परेचर को फॉलो करूंगा, और मुझे यहाँ पे फिर वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा, वो कितना आएगा, 62 के आस, सॉरी 67 के आसपास आएगा। इन दिस वे यू कैन। और ड्राइबल टेम्परेचर कैसे मिलेगा, ड्राइबल टेम्परेचर के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, एंड देन आई विल हैव टू गेट ड्राइबल टेम्परेचर। तो आप देखो यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर एट ए कितना आ रहा है, 80। एट ए वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, 67 के आसपास, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट ए इज हाउ मच, इट इज 60। तो ह्यूमिडिटी रेशियो इट इज मार्क ऑन द वाई एक्सिस, ह्यूमिडिटी रेशियो वाई एक्सिस पे मार्क किया जाता है। एंथैल्पी इट इज अगेन, यहाँ पे देख सकते हो एंथैल्पी की लाइन है, द लाइन विच इज मैचिंग विद द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, यहाँ से आपको एंथैल्पी मिलती, लेकिन एंथैल्पी की स्केल रहती है, वहां से आपको एंथैल्पी लेना है। आपने देखा था हम ड्राइबल टेम्परेचर कहाँ से लेते, सॉरी वेट बल्ब टेम्परेचर हम कहाँ से लेते हैं, सैचुरेशन कॉर से, और एंथैल्पी के लिए स्केल है, वो स्केल से हमको एंथैल्पी लेनी है, यहाँ से आपको एंथैल्पी मिलेंगी, बट इट विल मैचेस विद द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। स्पेसिफिक वॉल्यूम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये भी छोड़ दो, डायरेक्टली विल स्विच ओवर टू न्यू फॉर्मूले है कुछ, जस्ट गो थ्रू दिस फॉर्मूले। ये फॉर्मूले हमको यूज करके निकालना है प्रॉपर्टीज। तो नाउ सी इन एयर कंडीशनिंग यू कैन फाइंड द प्रॉपर्टी यूजिंग द रिलेशन, और यू कैन फाइंड द प्रॉपर्टी यूजिंग द चार्ट, दोनों। लेकिन अगर रिलेशन यूज करोगे तो इट इज क्वाइट ट्रबलसम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर आप चार्ट यूज करोगे तो क्विकली आपको वैल्यू मिलेंगी, और उसमें इंटरेस्ट भी बहुत आएंगे। इसमें आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, बट एग्जाम्पल आर आस्क्ड ऑन द एग्जाम,
बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑल्सो, तो आपको पता रहने को रिलेशन कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। तो पहला रिलेशन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज गिवन एज पीवी अपॉन पीएस। व्हाट इज पीवी? पीवी इज द वेपर प्रेशर, इट इज अ वेपर प्रेशर एट ड्राइबल टेम्परेचर। ये देखो पीवी, व्हाट इज पीवी? पीवी इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। देन पीएस, पीएस क्या है? पीएस इज द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द एयर एट डीबीटी, ड्राइबल टेम्परेचर पे उसका सैचुरेशन प्रेशर एंड पीएस, ये दोनों का जो रेशियो रहेगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अगर वो फाइंड करना है तो उसके लिए आपको ये रिलेशन यूज करना है 0.622 इंटू पीवी अपॉन पीबी माइनस पीबी, वेयर पीबी इज द बारोमेट्रिक प्रेशर और टोटल प्रेशर। ये भी आपको एग्जांपल में दिया रहेगा उसको इस, तो दो ही फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने हैं, दिस वन एंड दिस वन, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स यूजिंग द रिलेशन। और एक कंडीशन यहाँ पे, अगर एडियाबैटिक कंडीशन दी रहती है तो एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट एंथैल्पी। एडियाबैटिक मतलब एंथैल्पी रिमेन द सेम। सपोज यहाँ पे देखो एक ही चार्ट है एंड दिस इज द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। ये जो लाइन दिख रही है कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, ये 0.1 है, ये 0.2 है। तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब अमाउंट ऑफ मॉइस्चर यहाँ पे बढ़ रहा है। देखोगे आप, ये जो मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ रही है, 0.1 पे मॉइस्चर कुछ कम थे और 0.2 पे मॉइस्चर थोड़े ज्यादा है। तो मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ रही है मतलब उसको ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। और ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या, एंथैल्पी कांस्टेंट होने के कारण उसको बोलते हैं एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन। और ये एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन कब होता है? ये होता है दो कंडीशन पे, एक तो ड्यूरिंग वाटर सर्कुलेशन एंड व्हेन द यूजिंग द केमिकल्स, ये कंडीशन अगर रही तो एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन होता है। और एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन में एज द एंथैल्पी इज कांस्टेंट, एंथैल्पी कांस्टेंट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है एट कंडीशन 1 एंड 2। मतलब कंडीशन इनलेट पे जो वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा वही टेम्परेचर आउटलेट पे रहेगा। एक कंडीशन आपको याद रखनी है। We'll solve the numericals. So ambient air at pressure 100 kilopascal, dBT 30, मतलब यहाँ पे pressure is given, air pressure is given, dBT is given, that is 30 degrees centigrade, that is dryable temperature is 30 degrees centigrade, or relative humidity is 60%. Then saturation pressure is also given at 30 degree. It is how much? 4.24 kilopascal. The specific humidity of the air, ये पूछा है, what find मतलब इन्होंने यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर फॉर अ गिवन कंडीशन। तो ये गेट 13 का क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो जहां पे न्यूमेरिकल्स रहते हैं ना वो हमेशा 2 मार्क्स से रहते, और 3 पर क्वेश्चन रहा तो वो सिर्फ 1 मार्क का रहता है। इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज गिवन बाय द रिलेशन पीवी बाय पीएस। सो व्हाट इज गिवन हियर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज गिवन एंड पीएस आल्सो गिवन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? पीवी मिलेगा। तो relative humidity will be equals to 60% is the relative humidity given, PV हमको यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। और हमारे पास और एक टर्म है PS, PS is given how much? 4.24, जो कि यहाँ पे 30 डिग्री डीबीटी पे गिवन है इन द एग्जांपल दिस हियर। saturation pressure is how much? 4.24। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट अप की and we will get the value of PV, that is the partial pressure of water vapor. It is how much? It is 22.54 किलो, सॉरी 25 किलो पास्कल। हम यहाँ पे क्या फाइंड करना है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास रिलेशन है फॉर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। व्हाट इज द रिलेशन? इट इज 0.622 इंटू पीवी। अब इस रिलेशन में हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। द वैल्यू कौन से? 0.622 ये कांस्टेंट है, पीवी हमने फाइंड किया, इट इज ऑलमोस्ट 2.54, पुटअप करो एंड नीचे पीबी, पीबी मतलब होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर, मैंने बताया, टोटल प्रेशर विच इज हाउ मच? 100 किलो पास्कल, और पीवी अगेन हमने फाइंड किया हुआ, ये वैल्यू पुटअप करो। वैल्यू पुटअप करने के बाद you will get the answer, that is 0.016 kg per kg of the air, that is a specific humidity, right? It is वो काय में 0.016, वो kg में लिखा हुआ है। अगर इसको आपने इसको अगर ग्राम पर kg में लेना है तो ये क्या बन जाएगा? It will be 16 ग्राम पर kg of dry air। तो यहाँ पे हमें आंसर काय में पूछा है? हमें आंसर उन्हें यहाँ पे पूछा है हमें ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर। तो आंसर हमारा होगा 16 kg, ये आंसर 16 kg of, sorry, 16 gram of water vapor per kg of dry air. Next question is, moist air sample has a dBT 30 degree centigrade and specific humidity 11.5 gram per kg of air. If the saturation pressure is 30, if the saturation pressure at 30 dBT is 4.24 kilopascal and total pressure is 92 kilopascal, then relative humidity of the sample is how much? पहले केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछा था, और इस केस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज गिवन, आपको पूछा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करना है।
सबसे पहले स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, वैल्यू पुट अप करो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी गिवन की, देन पीवी यहाँ से आपको मिलेगा, योर पीवी इज गिवन, तो फाइंड आउट द पीवी, पुट द वैल्यू ऑफ पीवी इन द रिलेशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पीएस इज गिवन टू यू and get the answer, that is get the answer which is equals to 38%. सेम था क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एयर एट डीबीटी 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वेट बल्ब टेम्परेचर 20, मतलब एयर जिसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और वेट बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इज ह्यूमिडिफाइड इन द एयर वॉशर, उसको एयर वॉशर में ह्यूमिडिफाई किया, ऑपरेटिंग विद द कंटिन्यू वाटर सर्कुलेशन। अब इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, वाटर सर्कुलेशन। वाटर सर्कुलेशन का मैंने मीनिंग बताया था, एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन होता है। यहाँ पे जब आप वाटर की क्वांटिटी को डाल रहे हैं तो वहां पे वाटर का ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। देन द वेट बल्ब डिप्रेशन इज गिवन, इट इज हाउ मच, द वेट बल्ब डिप्रेशन एट द एग्जिट इज 25% ऑफ दैट इनलेट, मतलब इनलेट पे जो वेट डिप्रेशन है उसका 25% वेट डिप्रेशन आपको एग्जिट पे मिल रहा है। देन पूछा है व्हाट इज आस्क्ड, द डीबीटी ऑफ द एग्जिट, डीबीटी ऑफ द एयर एट एग्जिट ऑफ द वॉशर इज हाउ मच, वो आपको फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं, व्हाट इज गिवन, डीबीटी इज 40, dry bulb temperature of the air is given, that is 40 degree at inlet, wet bulb temperature 40, वो मैंने यहाँ पे लिखा inlet condition। then wet bulb depression at dbt, sorry, wet bulb depression at exit, it is also given how much, wet bulb depression at exit is 25% of the inlet, पर तो हम पहले inlet पे फाइंड करते हैं, उसका 25% लेंगे, which will be equals to the depression at outlet। कैसे निकालेंगे, ये 25% यहाँ पे लिया मैंने, और इनलेट पे फाइंड करो। इनलेट पे कैसे फाइंड करेंगे, डीबीटी एट इनलेट एंड डब्ल्यूबीटी एट इनलेट, विच इज गिवन हियर 40 माइनस 20, राइट, वो कितना आएगा, इट विल बी 5%। तो व्हाट इज 5, 5 इज द वेट बल्ब डिप्रेशन एट एग्जिट, तो वेट बल्ब डिप्रेशन एट एग्जिट इज हाउ मच, 5%। हमें क्या आपको फाइंड करना है, हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर फाइंड करना है। अब हम इसमें क्या लिखा है, the air washer, if recirculated water is used for humidification, then in that case humidification will be adiabatic, and during adiabatic humidification WBT1 is equals to WBT2। तो हमारे पास इसका मतलब क्या आ गया, वेट बल्ब टेम्परेचर एट इनलेट विल बी इक्वल्स टू वेट बल्ब टेम्परेचर एट आउटलेट। तो एक रिलेशन हमारे पास, कौन सा रिलेशन है ये, पहला जो हमने यहाँ पे निकाला था, वेट बल्ब डिप्रेशन एट आउटलेट इक्वल्स टू 5। अब इसमें वैल्यू पुटअप करना है, क्योंकि WB2 कितना है, WBT इक्वल्स टू WBT1 इक्वल्स टू WBT2, और WBT1 कितना है 40, ये गिवन है यहाँ पे, WBT1 गिवन 40, वो हमको यहाँ पे पुट करना है फॉर WBT। व्हाई WBT, बिकॉज WBT1 इज इक्वल्स टू WBT2, तो उसको हम पुट करेंगे, दैट इज इक्वल 20 को पुट करने के बाद यू विल गेट WBT की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 25। So what is dry bulb temperature at 2? It is a dry bulb temperature at 2 is the WBT, which is equals to 25, and is the answer. Last question. If the mass of the moisture contained in a closed metallic vessel is heated, then what will happen? यहाँ पे चार ऑप्शंस है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। अब देखो यहाँ पे कैसा एक चार्ट है आपके ऊपर, पहले हमको देखना है जब इस मास को हम हीट करेंगे, द मास विच इज इन क्लोज कंटेनर, तो जब भी मास क्लोज कंटेनर में होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो चेंज नहीं हुआ, मॉइस्चर की क्वांटिटी सेम है, सो अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम। तो ड्यू टू द क्लोज कंटेनर अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम, अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम, उसका मतलब क्या हो गया, द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी सेम, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल नॉट चेंज। ये देखो यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल चेंज बिकॉज द कंटेनर इज क्लोज, यहाँ पे रहती स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यहाँ पे मार्क करते, वहां पे चेंज होगा, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होंगी। इसका मतलब ये जो दो ऑप्शन है ना, इंक्रीजेस ये तो हो ही नहीं सकता और डिक्रीजेस ये भी नहीं हो सकता, फिर बच्चा क्या, आइदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज और रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज, दो में से एक होगा। अब यहाँ पे देखो हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इट इज हीटेड। अब जब हीट कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा कि राइट में जाना पड़ेगा, राइट में, क्योंकि टेम्परेचर राइट में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर राइट में इंक्रीज हो रहा है, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स राइट। और जब हम राइट में जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर गेटिंग डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 60, यहाँ पे 50, यहाँ पे 30, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब क्या गया, आंसर इज ए। सो विथ heating the mass in the closed container, your relative humidity will be decreasing. So this will be the answer, right? So answer is A, that is it decreases. So with this, we are
taken almost 20 to 21 questions, MCQ question related to this refrigeration air conditioning. दिस इज जस्ट प्रैक्टिस, इस प्रकार की प्रैक्टिस आपको करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको इस रेफ्रिजरेशन की सारी थियरी पता है. So if you are having any questions, you are most welcome. Otherwise, I am finished with my topic. So I will wait for 1 minute. And if you are any problem, you can ask me. Otherwise, you can log out. हेलो सर. हाँ बोलो बेटा. सर Yes? अगर हमें किसी रेफ्रिजरेटर और एसी को खरीदना है या हीट पंप को खरीदना है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन, मतलब हाँ देखो बेटा, क्या रहता पहले. हाँ बराबर है. सबसे आपने पूछा कि रेफ्रिजरेटर को और मुझे एसी को परचेस करना है तो क्या करना पड़ेगा. अब दोनों केस में ना ये दोनों डिफरेंट है. रेफ्रिजरेटर डिफरेंट है, एयर कंडीशनर डिफरेंट है. रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर सिर्फ टेम्परेचर को बिलो एटमॉस्फेयर मेंटेन करता है. और एयर कंडीशनर क्या करता है, एयर कंडीशनर कंफर्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मेंटेन करता है जो ह्यूमन के लिए चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके. तो पहले हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की. अब ये जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, इसको स्पेसिफाई किया जाता है वॉल्यूम में. इसको स्पेसिफाई करते हैं हम 120 वॉल्यूम का या 150 वॉल्यूम का, 350 वॉल्यूम का. अब आपको पहले देखना है कि आपको जो रेफ्रिजरेटर घर में लाना है उसमें आपको क्या क्या चीजें रखनी है. बहुत सारी अगर चीजें आपको रखनी होंगी तो आपको उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा लगेगा. अब वॉल्यूम कब ज्यादा लगता है, अगर हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फैमिली है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा चीजें रखनी पड़ेंगी. तो उस केस में आपको हाई मतलब मोर देन 200 वॉल्यूम का रेफ्रिजरेटर परचेस करना पड़ेगा. ऑलराइट. अगर आपकी फैमिली छोटी है, आप मतलब दो मियाँ बीबी है, तो उनके लिए एक 150 सीसी का वॉल्यूम का रेफ्रिजरेटर लीटर का काम चल जाएगा. 150 लीटर का भी वो रेफ्रिजरेटर परचेस करते हैं तो सफिशिएंट है, क्योंकि जितना कम वॉल्यूम का रेफ्रिजरेटर रहेगा उतना कम उसका कॉस्ट रहेगा. तो इस प्रकार से डिपेंडिंग अपॉन यूर क्या बोलते हैं पर्पस, किस पर्पस के लिए आपको यूज करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम अकॉर्डिंग टू दैट हम सिलेक्ट करेंगे वॉल्यूम और वो वॉल्यूम का हम परचेस करेंगे. अब आते हैं हम बात एयर कंडीशनर के ऊपर. अब एयर कंडीशनर क्या करता है, एयर कंडीशनर कंफर्ट कंडीशन को मेंटेन करता है रूम की. अब उसको स्पेसिफाई किया जाता है टीआर में, टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन. तो जो एयर कंडीशनर मिलता है वो एक तो आधे टन का रहता है, 1 टन का रहता है, 2 टन का रहता है. अब कितने टन का हमको रेफ्रिजरेटर परचेस करना, ये हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ये हम स्पेसिफाई करेंगे कि उस रेफ्रिजरेटर को हमको कहाँ पे लगाना है, कौन से रूम में लगाना है, उस रूम का साइज कितना बड़ा है, रूम का साइज कितना बड़ा है, देन उस रूम में कितने लोग रहने वाले हैं, फिर उस रूम में कितने इक्विपमेंट रखे हुए, मतलब लाइट कितने, वहां पे फैन कितने हैं, उस रूम में दरवाजे कितने हैं, खिड़की कितनी है, वो जो रूम है कौन से फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे कि बॉटम एकदम ग्राउंड फ्लोर पे. ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, दिस ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू ऐड द हीट इन द रूम. अब आपको क्या करना है, रूम के अंदर की पहले हीट निकालनी है. और रूम के अंदर की हीट आप कैसे निकालोगे बेटा, जब आपको पता रहेगा कि रूम के अंदर हीट कौन कौन सी कितनी हीट आ रही है. अब हीट दो प्रकार की होती है, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट. सेंसिबल हीट क्या होती है, टेम्परेचर के कारण जो बढ़ती है वो बोलती है सेंसिबल हीट. और लैटेंट हीट जो मॉइस्चर कंटेंट से बढ़ती है वो लैटेंट हीट. अब मैंने कहा था कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि रूम का साइज कितना है. जितना बड़ा रूम का साइज रहेगा उतनी बड़ी वहां पे हीट का एडिशन होते रहेगा. फिर मैंने आपको बोला था कि वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि लोग कितने रहने वाले हैं. अब क्या होता है कि जब हम लोग रहते हैं ना वहां पे, तो जब जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे अंदर की हीट ऐड हो रही है रूम के अंदर. बात करते वक्त अपने अंदर जो अपन जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अंदर एनर्जी डेवलप होती है, हीट डेवलप होती है, और वो हीट हमेशा हम डिसिपेट करते हैं सराउंडिंग के साथ. वो जब हम बात करते हैं तो अंदर की हीट भी हम ऐड करते हैं. अब देखो वहां पे एक ही बंदा रहेगा तो वहां पे हीट कम ऐड होगी रूम के अंदर. वहां पे अगर 5 लोग रहेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट एडेड विल बी मोर. तो नंबर ऑफ पीपल जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा हीट वहां पर ऐड होगी, तो हमारी वहां पे हीट की क्वांटिटी बढ़ रही है. सेकंड, फैन अगर लिया हमने या लाइट लिया, अगर एक लाइट ऑन कर दिया तो लाइट क्या होता है, लाइट से हीट डेवलप होती है. अगर आप लाइट को हाथ लगा के देखो वो गर्म होता है, मतलब एक लाइट है तो वहां पे हीट ऐड होगी थोड़ी कम. अगर वहां पे 2 लाइट है तो वहां पे ज्यादा हीट ऐड होंगी. अगर फैन है तो फैन से भी हीट ऐड होंगी. आई मीन टू से जितने ज्यादा इक्विपमेंट डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप यूज करोगे उतनी हीट वहां पे ज्यादा ऐड होंगी. सेकंड, हीट बाहर से भी अंदर आती है. रूम के अंदर खिड़की रखी हुई है, 2-3 खिड़की है, तो खिड़की में क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे पोर्शन रहते हैं वहां पे वो ओपन रहते हैं. अगर आपने रूम बंद भी कर दिया
तो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू अंदर हीट आ सकती है। सेकंड, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रूम है वो एकदम टॉप फ्लोर पे है क्या। टॉप फ्लोर पे है तो इट इज द टॉप ऑफ द रूम इज डायरेक्टली एक्सपोज टू दी सनलाइट। अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो वहां पे एक्सपोज नहीं होती है वो रूम। तो ये जो सारे फैक्टर होते हैं वो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि अंदर कितनी हीट ऐड हो रही है, और हमें फिर निकालनी पड़ती है कि इतनी सारी जो हीट ऐड हो रही है वो उसकी टोटल हीट कितनी आती है, और वो टोटल हीट निकालने के लिए फिर हम देखेंगे हमें कितने टन का रेफ्रिजरेटर लेना पड़ेगा। जनरली अगर आपका 10 बाय 10 का रूम है तो 2-3 लोगों के लिए हाफ टन का एसी सफिशियंट होता है, राइट। तो अगर हाफ टन मतलब अगर सपोज मैंने हीट का एडिशन किया और हीट जितनी हीट उस रूम में ऐड हो रही है सारे फैक्टर से, वो अगर हीट आ रही है मेरी 3 किलोवाट, इसका मतलब क्या आ गया, वो मुझे जो एसी लेना पड़ेगा वो एसी ने कम से कम 3.5 किलोवाट की हीट को रूम के अंदर से निकालने को होना। और 3.5 किलोवाट मींस नथिंग बट 1 TR हमने देखा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 TR का एसी लेना पड़ेगा मार्केट से। गॉट यू अथंग? समझ में आ गया आपको? यस सर। यस। और कोई और सर पावर कंजप्शन के बेसिक्स पे कैसे? हेलो। पावर, हाँ पावर कंजप्शन क्या आता है, आपको जितनी हीट ज्यादा निकालनी है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, उतना आपको कंप्रेसर बढ़ा देना पड़ेगा। मोर अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिक्वायर्ड, तो आपको रेफ्रिजरेंट भी ज्यादा लगेगा, और रेफ्रिजरेंट ज्यादा लगेगा तो उतने सारे रेफ्रिजरेंट को अकोमोडेट करने के लिए कंप्रेसर का साइज भी बड़ा लगेगा। कंप्रेसर का साइज बड़ा लगेगा तो आपको कंप्रेसर की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो मोर अमाउंट ऑफ मतलब इसलिए तो एक आप 0.5 टन का सॉरी एसी लोगे तो उसकी कॉस्ट कम रहेगी। अगर आप एक एचपी का 1 टन का अगर एसी लोगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी। क्योंकि कॉस्ट क्यों ज्यादा, क्योंकि वहां पे इवापोरेटर का साइज भी बड़ा रहेगा और वहां पे कंप्रेसर का भी साइज बड़ा रहेगा। कंप्रेसर का साइज बड़ा रहेगा मतलब कंप्रेसर को ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा रेफ्रिजरेंट को, इसलिए उसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी। एनी मोर क्वेश्चन अथर्व? ओके सर, थैंक यू सर। Welcome, beta. Very good. And you can ask the questions related to AC anytime through WhatsApp or my personal number. जो भी problem आपको आती है, you can ask me the question through chatting. Chatting तो मतलब WhatsApp पे through भी पूछ सकते हो, या if you want any notes, any PPT, you can ask me. I will provide you. Right? So अभी आप log out हो सकते हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। Thank you. सर रिकॉर्डिंग कसं करा तर म्हणजे डायरेक्टली बंद करू की पुन्हा पुढून बंद करावं लागते? थांबा मी येतो. या लवकर या. Stop recording. Recording will be saved.